I pressed, nothing happened. See, what's option coming here? Say yes, chat, the middle one. Press This the- one, this middle one? Yeah, Okay. Now, now you're live. okay. So, good morning, everybody. We are here. Yogi Vinodanand from India, lineage Devra Baba, and our, ascetic you can call Zimba. Oh, the tigress with us, Kung Fu Karate. So here is our introduction. So our new venture, Rishi Markande, Yoga Venture. We are here live. So we'll be with you for next 2 hours, sharing Ashtanga Yoga, Tantra, Mantra, and we'll have discussions about Gita, Brahmand Purana. So in the coming future, we'll be on Zoom so that we can interact, cross-questioning, to clear your doubts. So by the way, it's I'm also getting used to these computers. So good morning, Trivedi ji. If you are, if you can, if you're watching me, just yeah, because it's yeah. Good morning. Oh, wonderful. So your message is here. Oh, so there you are. Great. Thank you, Trivedi ji. Thank you for your response. So yesterday, as we started with your Sutra Neti, so today I'll let you know how all these things are to be done just within 15 minutes or 10 minutes. Then this is mandatory. We are now going to strive for the traditional yoga. Buddham Sharanam Gacchami. Let's see, Buddha. Wonderful. Here, Mahatma Buddha is with us. Let's prostrate. Buddham Sharanam Gacchami. Non-violence under all circumstances. So, today, already we have practiced this Neti Kriya, now this Neti Kriya, then Jal Neti. This will be done just within 10 minutes. And today we'll add with how to do Jal Neti even without your this Neti pot. So this will be another, thing of attraction you will be learning with me. So here we go, your Neti Kriyas, as we have practiced. When you get up early in the morning, after you're attending your nature's call, so what you can do, and the best time for yoga, yogis can open their Shushmana channel, Saraswati, the channel of knowledge, will be going in details. You can open at your will with some practices, but it needs time, gradual, okay, nothing is instant. So we'll reach that stage also to how to open your Shushmana. Now, the best time for meditation is before sunrise. For those who are not able to open a Sushma anytime, so that is from 3:30, you can say 4 to 6. So, so here we go for the Sutra Neti today. Already I have sterilized it. The way to sterilize with the hot boiling water, keep the netis here, sterilize it with the saline water. Now I am going to take this is a desi ghee, cleared butter. Oh, I am in English. I have to switch over to Hindi. संपूर्ण भारतवासियों को मेरा प्रणाम. सो ये जो हम लाइव हैं, यूँ तो संपूर्ण योगाभ्यासियों के लिए है, लेकिन ये विशेषकर मेरे चैरिटी बिगिंस एट होम, जो मेरे हमारा जो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हिमालय रेंजेस जिनकी हमारे ऊपर सदा वाइब्रेशन कृपा उन नागा बाबाओं की बनी रहे. जय महाराज, जय हो युधिष्ठिर प्रसाद महाराज जी. हम सब एक ही सत्ता है. तो आज हम जो हमारा लक्ष्य मैंने आपसे बताया था, हम हिंदी में चलेंगे. पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. हमें जिस रास्ते पे जाना है, यानी कि उस बाट मतलब रास्ता, पहले हम उस सब परिचित हैं इससे. हम उस रास्ता हमारा ये है कि इस मृत्यु लोक में आने का जो मकसद, हमारा जो लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति. और योग हमने सर्वोच्चतम, ये सबसे उच्चतम विद्या है. हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये इसमें हमने क्या करना है, हमने विधि पूर्वक जाना है, अष्टांग योग में और समाधि तक जाना है.
तो इसमें गृहस्थ में रहते हुए जीवन में कैसे हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपना रूपांतरण कैसे करना है, तो ये प्रोसेस प्रारंभ होता है अष्टांग योग से। 8 अंग, अष्टांग मतलब 8 लिम्स, 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारी नींव है। इसी नींव पे हमने अपनी जो आगे की जो है समाधि तक का आसन, वज्रौली, खेचरी, पूरे संसार में पूरा का पूरा एंजॉय करते हुए फिर आपका एजलेस कैसे होना है, देव रहा बाबा हमेशा अपना बने रहे बच्चों जैसा हमारा, हम सब बच्चे ही हैं, बचपन के दिनों में चले जाइए। ये हमारा हुआ शॉर्ट में आज, ये आपके षट कर्म हमारी नींव जो अनिवार्य है योग में। इसके बिना आपका योग बहुत दुर्गम बन जाता है। लीजिए आज हम नीति से फिर शुरू करते हैं। सूत्र नीति कल हम इसका विस्तार में बात कर चुके हैं, जिसमें आप थोड़ा घी लगा सकते हैं। जो शुरुआत जो कर रहे हैं, जो इसके अभ्यस्त हैं, उन्हें घी नहीं लगाना है विजिबल, क्योंकि जब मसाज होना है इस पोर्शन से तो जो घी से बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट कर देता है, चिकना। तो हमें वो जो मसाज मिलनी है यहाँ नेजल इंटरनल हमारे वुल्वा से पीछे जो हमारी जो से हमें कपाल कुहर कहते हैं, यहाँ मसाज प्रॉपर नहीं मिलती। तो बाद में आपने इसका घी का प्रयास कीजिए, ना लगे इसमें। तो इसमें जैसे हमने गर्म पानी, थोड़ा सा पानी होना है इसमें। ये देखिए, ये मैं पहले से इसे जीवाणु मुक्त कर चुका हूँ। इसको उबलते पानी में ये मैंने नीतियाँ भी आपकी स्टरलाइज कर ली हैं, मेडिकल साइंस में से स्टरलाइज करना कहते हैं। जीवाणु मुक्त हो गया। अब देखिए इसमें ये मेरी नीतियाँ, दरअसल हम प्रयास करेंगे हमें नीतियाँ प्राप्त हो। ये ढीली हो गई हैं तो थोड़ा हो सकता है कभी ये मुझे जाने में इसमें नीति प्रॉपर समय लगे। आप नहीं घबराइएगा, आप में ऐसा नहीं होगा। जब आप प्रॉपर नीति होगी आप करेंगे। हियर आई गो, आप देखते जाइए कितने थोड़े समय में नीति हो जाती है। फिर हम आगे आज स्विच करेंगे। हियर आई गो नीति। ये दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे आपने स्निफ करना है। ये छींक होती है, स्नीजिंग, इफ ये आपको थोड़ा सा इरिटेशन होएगा, वो नेचुरल है। तो देखिए यहाँ मैं गया, अभी आप देखिए कितनी शीघ्रता से होता है। नासिका चेक किया तो मैं अपने दाई नासिका रंध्र को अभी प्रयोग इसमें से लेती ले जा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ धीरे धीरे इसको इंसर्ट कीजिए। ये देखिए नीति आ गई गले में, ये मैंने निकाल दी। देखिए इसमें कुछ समय नहीं लगता है, ये हमने यहाँ पहुँचना है। ये मात्र 5 मिनट में होता है। फिर योगाभ्यास हम आज स्विच ओवर करेंगे। हियर इट इज़। ओम नमः शिवाय। मेरा यहाँ ऑपरेटेड है, थोड़ा रुक सकती है नीति। आप इसको इसमें बिल्कुल वो आप स्केर्ड मत होइए। ये बच्चों की क्रियाएं हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, तो बहुत प्रभाव है इनका। बहुत अगेन आई गो हियर। त्रिवेदी जी, आई होप यू आर एंजॉइंग। स्टिल वी आर ट्राइंग ऑल दीज अप्लायंसेस। हियर वी गो like this, like this. अब जैसे मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी नीतियाँ रुक रही है। तो बहुत पहले हुआ था सेप्टम का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रोटेट कर रहा हूँ। ये मैं रोटेट किया, ये फिर मैं ट्राई। ये देखिए, ये मेरा सिर्फ ऑपरेशन की वजह से है, आपको ऐसा नहीं होगा। हाँ देखिए आ गई, अब ये गले में आ गई। वेरी सिंपल। ये थोड़ा और गले में पहुंच गई है। देखिए इसमें घबराना नहीं है। जैसा अब हुआ, मेरा ऑपरेशन की वजह से हुआ, जैसे इसमें सुगमता से चली गई। हम फिर अभ्यास करेंगे, आपको ये कठिनाई नहीं आएगी। मुझे बॉक्सिंग की वजह से मेरा सेप्टम ऑपरेटेड है, नेवर माइंड, आई विल स्टिल ट्राई।
मुझे इसमें अधिक अभ्यास करना पड़ रहा है। सो एनीवे, नहीं हुआ तो नेवर माइंड। हाँ, आगे रुक गई है, वहाँ मेरा ऑपरेटेड है। हाँ, तो नेवर माइंड। अब मैं ये एक से आपको दिखाता हूँ। ये मसाज, ये हिस्सा नहीं रगड़ा जाना चाहिए। ये अब मैं इस नेती से ट्राई करूँगा। वो हार्ड नहीं थी, बिकॉज नेवर गिव अप। इन माई केस, सी इट्स एन एग्जाम्पल बिफोर यू। वंस अगेन ट्राई, दिस विल हैपन टू मैनी पीपल जिनकी हड्डी बढ़ चुकी है, जिनका थोड़ा मांस बढ़ जाता है। उनको ऐसा होगा कि नेती जाने में थोड़ा सा आपको, जैसे अभी मुझे हो रहा है मेरे ऑपरेशन की वजह से, तो आपका नेती थोड़ा सा हम हार्ड कर लेना है। अब देखिए, पहली नेती सॉफ्ट थी। त्रिवेदी जी देखिए, पहली नेती ये ऐसे लटक गई थी तो इसमें ये मुड़ जाती थी। तो अगला पोर्शन ये हार्ड होना है, लाइक दिस। अब देखिए मेरे गले में पहुंच गई। ये वही, अब ये दो होंगी। सो ये हमारी नैतिक क्रिया हो गई। सो त्रिवेदी जी, इन द कमिंग फ्यूचर हमें लोग फॉलो भी कर रहे हैं। हम अपनी नीतियाँ बनाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो मधुमक्खी के छत्ते का मोम मिल जाए, तो फिर ये सैकड़ों नीतियाँ हम यहाँ बना डालेंगे सूत्र लेके। तो आपको भी हम प्रक्रिया आप देखेंगे कैसे बनती हैं नीतियाँ। ये हमारी सूत्र नीति हो गई। ये सिर्फ मात्र 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद हमने इसको फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब ये बहुत आवश्यक है। सूत्र नीति के बाद आपने जल नीति करनी है। जल नीति आज देखिए, आज हम आपको इसमें एक और अच्छा, एक बड़ा अच्छा आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने इसमें जैसे जल लिया हुआ है, इसे ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि पंजाबी में इसको बोलते हैं कोसा पानी, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इससे हम नीति करना है। कल एक्सप्लेन कर दिए। आज हम थोड़ा धीरे धीरे रोज़ रोज़ एक्शन को और क्विक करते चले जाएंगे, ताकि 2 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकें। घंटों हमें लंबे शीर्षासन, नौली। सो ये आपका गर्म पानी, इसमें नमक डला हुआ है। पहले आपने गलती नहीं करनी। ये देखिए, स्किन के ऊपर डाल के देखिए, आप सहन कर सकते हैं तो ये यानी कि फिट है। मुंह से सांस लेना है, आवाज़ नहीं करनी है। यदि आप नाक से सांस लेंगे, आपकी विंड पाइप में, श्वास नली में आपका पानी जाएगा, आपको हुथू आएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए लगाया। मैं प्लेट में पानी गिराऊंगा सो दैट या आपने खड़े होके कर सकते हैं। ये देखिए, आपने एंजॉय कर रहा है। यहाँ आप केंद्रित कीजिए। ओम नमः शिवाय। आपने नहीं बोलना, नहीं तो पानी आपका फेफड़े में जाएगा। मुझे थोड़ा अभ्यास है। ओके, देखिए ये बाएं, ये मेरा हुआ नीति कर्म 1 से। आपने इसको ज़्यादा करना है। जो खास करके जो कोई आपकी जैसे माइग्रेन है, किनको आपको साइकिक कोई प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोसिस है ना, हेडेक है, आपने इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे आप 3-4 लोटे भी कर सकते हैं और इसको अनंत करते हैं। आप देखेंगे आपका ध्यान स्वतः ही लगेगा। तो ये नीति का एक नासिका से हुआ। सो आई होप यू आर एंजॉइंग। सो अब ये हुआ सिंपल क्रिया। ये मैंने इस नासिका में लगाया। देखिए, हाँ, ये मैंने टिल्ट कर दिया। ये कितने सरलता से आ रहा है। ये बच्चों का एक, लेकिन ये बहुत प्रभावी हैं। ये आपकी नीति क्रिया हो गई। सो आप देखिए, ये सिर्फ 5-7 मिनट लगेंगे। कल से 2-3 मिनट में ही हो जाती है। ये किया, फिर इसको मसाज किया, ये जल नीति हो गई। अब तीसरा हमने क्या करना है, जैसे कल हम कर रहे थे, आपने इसको रूटीन बनाना है अपने जीवन का। आपने अपने लिए एक अपना पैकेज बनाना है कि आपकी जो दिनचर्या है। जैसे हम योगाभ्यासी हैं, हम 24 ही घंटे भगवान ने हमें कृपा से हमें मिले हुए हैं। तो हम गुफाओं में घूमना, नदियाँ, तो आपका जीवन बड़ा व्यस्त है। कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई भी हैं आप। सो उसमें आप अपने जीवन में जो आपके, जैसे अब ये नीति, इनको तो आपने करना ही है। तो इसमें आपका एक धीरे आप, जैसे हम कुछ दिनों में हम देखिए समय बातें भी करते हैं, हम व्याख्यान होता है। ये आपका हो गए 5 मिनट।
आप जो नए हैं उनके लिए 10 मिनट हो सकता है, कुछ दिनों बाद आप 5 मिनट में ही करेंगे। आपकी सूत्र नीति हो गई, जल नीति हो गई। इसके बाद जो ज़रूरी है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आज हम जो नई ऐड कर रहे हैं, इन नासिकाओं में देखिए, हमारा जो अंदर से जाके जो आपकी जो कपाल कुहर है, जो वुल्वा है, पीछे जो कैविटी है जिसमें से अमृत हमारा, जिसकी हम खेचरी में आगे चर्चा करेंगे, तो वहाँ ये जो हमारे जो नासिका छिद्र हैं आंतरिक, और आपकी जो आंखें हैं और जो कान हैं या आपका गला है, ये सारे के सारे अंदर से लिंक्ड अप हैं। ओके, सो तो क्या है इसमें, मैं आपको एक बड़ी रहस्यमयी थोड़ी बात भी मैं पहले जब आर्मी में था, मैं सिगरेट पीता था, तो मैं देखिए आपको शेयर कर रहा हूँ ये नासिका ये कैसे जुड़े हुए हैं। आर्मी में मैं हाई अल्टी में था, मैं उन दिनों सिगरेट भी पीता था, ये बहुत पहले की बातें हैं, 1980। तो उसमें बॉक्सिंग में मेरा ये मेरा जो ईयर ड्रम फट गया था किसी कारण से, पंच और समथिंग। तो देखिए हमने क्या किया उसमें, इसलिए जीवन में कभी हर चीज़ को हमने पॉजिटिव बना लेना है। तो मैं जब सिगरेट पीता था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये सिगरेट का धुआं मैं कान से निकाल सकता हूँ। तो आई ट्राइड सम अदर डे, क्योंकि मेरा पर्दा तो फट गया था बॉक्सिंग में। तो मैंने किया, जब स्मोक करके थोड़ा प्रेशर डाला तो वो धुआं कान से निकलता था। तो वी मेड इट अ गेम, यू नो। इवन तो जो आपकी जो डाइवर्स कंडीशंस हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, उसको भी हम अपना इस्तेमाल करना है। ऐसे थोड़ा मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ। अब कोरोना है, ये हमारा एक देखिए दुश्मन भी है, हमारी मृत्यु का एक प्रतीक है, लेकिन जीवन मृत्यु एक ही है। हम कितना सीख रहे हैं, नई इन्वेंशंस आ रही हैं इसी प्रकार से। सो जैसे सांप का जहर है, उसको भी हम अमृत, हम उसकी दवाई बनाते हैं, वैनम, एंटी वैनम। सो मैं फिर अगेन थोड़ा आज हम क्योंकि हमारे पास समय है, हम अच्छे से एक दूसरे को जानें, हमारा ध्येय। आज हम ऐड करेंगे जो नई चीज़, नई नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस कुछ नहीं है, कुछ एडवांस नहीं है। जो ABC है उसी से पोइट्री कंपोज होती है, और वो सब में मिला जुला है सब, बचपन में ओल्ड एज में बचपन। सो आज हम जो ऐड कर रहे हैं, यदि हमारे पास नेति पॉट हम नहीं चाहते, ओके, आप कभी भी आप नेति पॉट का भी बर्डन नहीं लेना चाहते, सूत्र नीति आपने कर लिया, ऑलराइट। यदि आप मिस मत कीजिए, यदि बाई चांस आप सूत्र नीति नहीं कर पा रहे हैं, शुरू में आप कैथेटर, रबर कैथेटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडविजिबल है, बाद में उसका त्याग कर सूत्र नीति पे आप आ जाएं। सो ये आज हम करेंगे जो आपकी जो, ये बहुत सिंपल है, एक बच्चों जैसा ट्रिक है। मैं पानी का घूंट भरूंगा तो ये लोटे की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम अंदर के प्रयास से, नाकों के उससे पानी बाहर आ जाता है। इसको करते हैं योगा सेंटर में, छोटी छोटी, एंड आई हैड बीन टू इंडिया, छोटी लड़कियां, बच्चे, सब हज़ारों लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। सो हम इसको ये देखिए, and again for the, in any case some English people are watching me, these are the mandatory things. मैं थोड़ा सा and then afterwards we can go differently in English videos also, but now the purpose is to convey the message. I hope you won't mind, sometimes we'll be in Punjabi, some in Hindi, trilinguist. The purpose is to convey the message, to share the, I mean, nectarous things with our we are all brothers, you know, in this globe, you know. So we are one and the same. We have to reach that stage, you know. So we were already we have practiced this, the Sutra Niti and Jal Niti. So these are the must. We have started this yoga from the very beginning. छोटे में आप भारतवासियों के लिए. Now this is your नीति क्रिया, जल नीति क्रिया. पानी का घूंट पीना है, खड़े होकर आपने कोशिश करनी है कि जो मुंह में पानी जाएगा उसको नाक की तरफ से आप प्रेशर से, अंदरूनी है ये, अब बड़ा इजी है, आप उसको कर लेंगे, सिर्फ प्रयास, आप देख लेंगे, आप मुझे करते फिर आप कर लेंगे। सो आप देखिए, मैं पानी का घूंट भर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड लग सकता है, तो आप जब शांत होंगे, मृदुल होंगे, आप करेंगे ये क्रियाएं, बस 2-4-5-10 मिनट में हो जाती हैं सब। अब देखिए मैं पानी भरा, लेट मी कॉन्सेंट्रेट नाउ बिकॉज आई हैव टू, मैं अपने जो अंदर जो पानी है उसको थोड़ा सा प्रेशर देना है, नाक से आएगा। ये देखिए, ओम, I hope you have seen it.
ये देखिए, मैंने अपने स्वर कंट्रोल के लिए ये धागा, ये पेपर लगाया था, वो निकल गया। हम स्वर विज्ञान की बात बाद में करेंगे। योग बहुत गोपनीय है, रहस्यमयी है, वो सब हमारा ही है। कुछ रहस्यमयी है भी, नहीं भी है। जैसे आप एक श्रेणी, आप एक लेवल पे, प्राइमरी से आप एक 10वीं कर लिया, फिर आप साइंस की लैब में जाना है, तो फिर लैब गोपनीय बच्चों के लिए है, उसमें नहीं जाने दिया जाता। तो गोपनीय कुछ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपके लेवल के अनुसार नारायण आपको वहाँ आपको एंट्री मिलता चला जाएगा। सो ये जो आपको रहस्य जो मैं यहाँ ले लिया थोड़ा सा, ये स्वर विज्ञान का है। ये देखिए, मैंने स्वर विज्ञान को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी जैसे ये मैंने आपको क्रिया बताई, मुंह से पानी भरा, ल्यूक वार्म वाटर, ये आपकी जल नीति देखिए बिना लोटे के कैसे सरलता से हो रही है, सुगमता से हो रही है। सो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। पानी का घूंट भरा। सो लेट मी हैव द प्लेट। सर एनीवे आई विल क्लीन। सो ये मैं पानी का, त्रिवेदी जी आर यू एंजॉइंग? हाँ या मेरा आपसे अनुग्रह है कि जितने आप लोग ग्रुप में आइए, यंग जनरेशन आइए, क्योंकि हमारा मिशन ये प्योरली इस लव मिशन और अनुकंपा से है ये मिशन। ये सब चीज़ें गुरुगम में हैं, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। हम तो लाइव हैं, आप अपने समय के अनुसार हमारे साथ जितना आप हंस बन के अच्छी चीज़ें ले सकते हैं ले लीजिए, बाकी त्याग दीजिए। सो यहाँ ये मैं फिर पानी भरा, ये इसको आप एडवांस नाम दे सकते हैं, एडवांस जल नीति। सो जैसे मैंने पहले ही बताया, एडवांस नाम कुछ नहीं है, वो सब सरल चीज़ें हैं, बच्चों जैसी चीज़ें हैं, इनके लाभ बड़े। ओफ वंडरफुल। सो ये मैं पानी का घूंट भरा। ये इसमें आप नमक डालना मत भूलिए। मैं जैसे खिचड़ी अभ्यासी हूँ, तो मैं नमक नहीं टच करता हूँ, मैं इसमें नहीं। तो लेकिन यदि आप नमक नहीं डालेंगे, आप जल नीति करेंगे बिना नमक के, तो आपको बहुत ज़्यादा एक अंदर एक करंट जैसा लगेगा। आप थोड़ा सा आप झिझक सकते हैं उसको करने में। नमक आप डालेंगे तो बड़ा कंफर्टेबली होएगा। तो यहाँ मैं पानी का घूंट भर रहा हूँ, फिर दोबारा नाक से कैसे, सिंपल ट्रिक है, आप देखिए, फील करना है इसको। अंदर गया पानी, मुंह में थोड़ा सा कानों की तरफ को पानी को ले जाके अंदर पीछे को थोड़ा सा करेंगे, वो अपने आप आएगा। सो अगेन आई गो हियर। ओके, कीप एंजॉइंग। सो ये मैंने पानी का घूंट भरा, ये देखिए पानी का घूंट भरा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आनंद ले रहे हैं। ये देखिए पूरा रेशा ये कैसे बाहर आ रहा है। ये रेशा है। जैसे हम बच्चे होते थे, देखिए हमें योग हमें बचपन की ओर ले जाता है। जैसे बचपन में हमारी नली बहती है, ऐसा कर लेते हैं। और ऐसा ऑल माता की गोद है, हम सब बच्चे ही हैं। ये शरीर पुराने होते हैं, फिर नए होते हैं। सो ये आपको मैंने दिखाया कैसे बड़े सुगमता से। हाँ, इसका ट्रिक, जैसे आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा पहले आप सांस भर लेना है। सांस भर के जब पानी आपके मुंह में आएगा, मैं आपको बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूँ, बाद में इतना आपको प्रयास बन जाएगा। शुरू में बैलेंस की ज़रूरत है। तिपहिया साइकिल आप सीख गए, फिर आप बातें भी कीजिए, गाड़ी भी चलाइए, साइकिल भी चलाइए। सो लाइक दिस। हाँ ट्रिक, ये पानी जो हमने मुंह में भरा, थोड़ा सा लंबा सांस हमने पहले भर लेना है, और फिर क्या करना है, उस सांस को जब हमने छोड़ना है, जब पानी पीछे को जाएगा, उस सांस को नाक से बाहर निकालना है। सांस का प्रेशर हमने नाक पे देना है, तो जो पानी है वो यहाँ से जो प्रेशर लेके आपके नासिका भाग से आएगा। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नीति पॉट नहीं है, आप रोज़ इसे कभी भी बना कर सकते हैं। जब आप थोड़ा फील करते हैं आप लो हैं, ऑफिस में भी हैं आप, नेवर माइंड, अब जैसे घूंट भरा अपन ने, ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा नमक डाला, आप देखिए कैसे फ्रेशनेस फील करेंगे उसी समय, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ये सब एकदम एक्टिवेट होते हैं। तो ये इसके ऊपर इतने शास्त्र भरे हुए हैं, सूत्र नीति और जल नीति के ऊपर। जैसे जैसे गहन में जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए हम एक एक चीज़ को बड़े
गहन से अध्ययन, आसन भी एक एक उसकी बारीकियों में, सूक्ष्म में जाना है। इस स्थूल ये जो शरीर है हमारा, ये पृथ्वी का ये जो आपका अन्न कोश है, अन्न से बना है, फिर आपके ज्ञान कोश में हमने पहुंचना है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे लेवल्स हैं। तो हम सांख्य मार्ग पे हैं, ज्ञान कोश की ओर जाना, ट्रांसेंड। सो अगेन मैं आपको दिखाऊंगा ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, ये संसारिक स्थितियां हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई टॉक। देखिए मैं फिर भर रहा हूँ, मुंह में ले जाऊँगा, थोड़ा सा टिल्ट करूँगा, पानी मेरा यहाँ पीछे गले की तरफ आ जाएगा। फिर मैं जब सांस को रोका हुआ था मैंने, फिर उस सांस से मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगा, उस प्रेशर से नाक की तरफ प्रेशर दूंगा मैं। देखिए मैं बाहर की तरफ प्रेशर दे रहा हूँ, अब मैं नाक की तरफ दे रहा हूँ। तो उसमें आपका ये आपकी जल नीति कितनी सुगमता से एडवांस नीति हो जाएगी। सो हियर आई गो अगेन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीवन में काम आएगा। और इस आप और लोगों को भी सिखाइए। ये देखिए पूरा सांस पूरा अधिक भर लेना, बड़ा घूंट भरेंगे आप, थोड़ा सा भरेंगे तो नहीं होएगा, पूरा भरना है। आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये सरल देखिए, फिर अभी मेरा रेशा आ रहा है, इसको देखिए आप ध्यान से। इसका मतलब कितना मल था हमारे इसमें। यदि मैं ऐसे ही प्राणायाम करने बैठ जाता तो देखिए ये रेशा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा शरीर में पूरे आपके टॉक्सिकेंट्स हैं। ये सारा इसलिए नीति की जाती है इसको निकालने के लिए। सो ये जो रेशा है, जो हमारे अंदर जो हमारे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारा सिस्टम है इम्यूनिटी का, जब अंदर फाइट होती है डिजीज़ और इनसे, जो आप ये संघर्ष तो चल ही रहा है जीवन में। अंदर शरीर में जो संघर्ष है, जो हमारी जो वाइट ब्लड कॉर्पस हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सो वो जो फाइट करते हैं इस बीमारी के, तो ये जो रेशा है ये उस रूप में है, ये निकलता है शरीर से। ये नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, हम योगाभ्यास से टॉक्सिकेंट क्लियर करते हैं। आपके पंचकर्म हैं वो भी इसलिए बने हुए हैं। तो योग में ये अपने आप में पूर्ण है योगा। सो इसमें ये देखिए, इससे आपने फिर नेति किया, अभी भी देखिए मैंने सूत्र नेति किया था, जल नेति किया था, फिर मैं अभी नेति कर रहा हूँ, फिर ये रेशा देखिए कैसे आया। यही ये हमारा डिटॉक्सिकेशन हो रहा है। तो ये इसकी महत्ता है। देखिए ये जो आपका था एडवांस जल नेति, यहाँ अब हमने क्या ध्यान देना है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग। अच्छा है पंजाबी में बोल देना बच्चों। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं वो संस्कार रहते ही रहते हैं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ये मेरा एक मैडिटेशन करने का तरीका। आई टॉक टू इन पंजाबी। जो मैं पंजाब सीगा न्याणे हुंदे, वो गुरुद्वारे साहब में गुरबाणी चल रही है, फिर एक रहाओ वर्ड आता है। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। मैं पिकअप करता हूँ चीज़ें जो जहाँ से भी आपने भी ऐसे ही करना है। हंस बन के जो आप में फिट होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आप पिकअप करते जाइए। आप मुस्लिम से देखिए, आप एक चीज़ पकड़ें कितनी बड़ी तगड़ी। मेरे दोस्त आर्मी के, वो ठेके के समीप नहीं जाते। शराब, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा तगड़ा डिसिप्लिन है, हमने वहाँ से पकड़ा। जब उनके रोज़े होते हैं तो वो पक्का नमाज अदा होनी है 5 समय, हमने पिकअप कर लिया वहाँ से। अब जैनियों से हमने पिकअप करना है, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये मेरी लाइफ में फिट होता है कि कोई चींटी भी ना मरे, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो यहाँ से पकड़ लेना अपन। सिख मैथोलॉजी, श्री गोविंद सिंह जी, ब्रेवरी, वैलर, ये सब चारों तरफ ये भगवान की ही शक्तियाँ हैं, नारायण की, भगवान श्री कृष्ण गीता द्वारा। जहाँ कहीं आप प्रॉस्पेरिटी यानी कि आप लक्ष्मी की शक्ति देखते हैं, धनवान है कोई बहुत ज़्यादा, वो भगवान का ही रूप है, वो भगवान की शक्ति है वो। क्योंकि लक्ष्मी क्या है, एक टोकन है इस पूरे संसार का, इस मृत्यु लोक का। और ये मृत्यु लोक स्वयं में ही इंद्रियों का खेल है, मन की कल्पना। सो हमारा जो मात्र लक्ष्य सिर्फ हम सिर के बाहर खड़े हो गए, टांगे फोल्ड कर ली, ये सब हमारे साधन हैं। पहुंचना हमने यही है। ये नीति, सूत्र नीति, ये सब क्लिनजिंग है, क्रिस्टलाइक। हमने अपने आप को साफ़ होना है। जैसे मेरा भी प्रोसेस चल रहा है अभी क्लिनजिंग का। भगवान चाहते हैं मैं ऐसे करूं तो कुछ लोगों में भी वितरण हो।
तो ये इसलिए हम एक दूसरे का आदान प्रदान, गुणों में गुणों का व्यापार हो रहा है। अगेन भगवान श्री कृष्ण की गीता देखिए, आप गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता, वो इतनी साइंटिफिक है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, एक विज्ञान है। अब मैं योग भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में गीता के, मैं कभी ज़्यादा अभ्यास भी नहीं करता, मात्र गीता के दर्शन, एक दो श्लोक जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब गीता देखिए कैसे एकदम से अब मन में स्वतः ही आता है, कहीं पन्नों पे नज़र पड़ी होगी, पुण्य उसके जो लीव्स हैं, लोटस लीफ गीता के, श्रीमद् भागवत श्री भगवान श्री कृष्ण के, फिर भगवान श्री कृष्ण को जानना। अब देखिए मेरे मन में कहाँ से वो गीता के किस अध्याय से आ रहा है कि गुणों में गुणों का व्यवहार हो रहा है। इस दुनिया में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। हाँ, गुण क्या है? सात्विक, तामसिक, राजसिक। किसी में कुछ अधिक है, किसी में तो कोई अच्छा लगता है, हमें कोई बुरा लगता है ना। और फिर श्री भगवान देखिए अगला मेरे मन में क्या आता है, अभी मुझे नहीं मालूम किस श्लोक का कौन सा अध्याय ये है कि जो इस दुनिया में एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ गॉट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़, यह आपकी जड़ से लेकर चेतन तक, उसमें खिंचाव भी है और रिपल्शन भी है। हमें मतलब आकर्षण भी होता है उसमें, और उससे द्वेष भी हो जाता है, या मतलब वो हमसे रिपल्शन होती है। जैसे हमें कोई स्त्री बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वही स्त्री कितना अट्रैक्शन है, लेकिन वही उसमें एक वो ही रिपल्शन का गुण बन जाती है। जब शादी हो गई तो हम मतलब उन चीज़ों से एनाटॉमी को नज़र आने लगा सारा, तो ना, तो वासनाएं थोड़ी क्षीण हुई, तो वो एक रिपल्शन बन गई। तो अच्छी से अच्छी चीज़ इस दुनिया में वो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। इस दुनिया में यदि कोई हमें अपना दुश्मन लगता है, दुश्मन नहीं है, उसके जो गुण हैं ये सिर्फ सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन चीज़ों से हमने ऊपर उठना है। योग ये एकमात्र हमारे साधन हैं। हमने सूक्ष्म में जाना है। घंटों शीर्षासन करने के बाद भी सिर्फ आसन तक ही नहीं चिपकना, वो नारायण स्वयं मिल जाएंगे। तो मैं फिर लंबा चला गया। अब इस नीति के बाद आज हमने किया, समय हमारे पास पर्याप्त है। फिर अगेन हम धीरे धीरे हमारी जो बातें, हमारे व्याख्यान कम होंगे और योग के ऊपर हम ज़्यादा समय रहेंगे। सो ये हो ये आपकी सूत्र नीति, उसको हमने फॉलो किया। मतलब सूत्र नीति के बाद हमने जल नीति किया। कुछ लोग पहले जल नीति भी कर लेते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले जल नीति कर लीजिए, क्लीन हो गया, फिर सूत्र नीति कर लीजिए। सूत्र नीति में कुछ रैप्चर हो सकता है थोड़ा सा, जैसे सूत्र नीति आप पहली बार करते हैं तो जब ये धागा घिसेगा तो आपका जो वुल्वा जो बोलते हैं, जब आपकी कपाल कुहर से आप बाहर को रस्सी खींचते हैं तो थोड़ा सा वो छिलता है, निसंदेह वो थोड़ा सा छिलता है। आपको थोड़ा जब थूक निकलेंगे, दर्द होगा रात में हल्का सा, तो वो कुछ दिन है। फिर आपका जो जैसे ही हम कैथेटराइजेशन करते हैं उसमें भी फिर हमारी नड़ियाँ वैसी आदी हो जाती हैं। तो आपने फिर उसमें जब सूत्र नीति के बाद इसीलिए ये जल नीति की जाती है। फिर उसके बाद आप घृत नीति कर सकते हैं, घृत मैंने देसी की, और इस तरीके से आप पानी पी भी सकते हैं, दूध पिया जाता है इसमें। तो हम धीरे धीरे जाएंगे, ये चीज़ें हमने बहुत जल्दी सीख लेनी है, हमने ज़्यादा, ये हमारे रूटीन बन जाएगा। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश किया फिर देन टॉयलेट गए, फिर ऐसे ये उस प्रकार से है, ये रूटीन है आपका। उठे आप, खट 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 खट, डन, देन आपके आसन। सो अब यहाँ जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपसे बताया था आर्मी में मैं जब ये जुड़े हुए हैं ये साहब हमारे, तो मैं जब सिगरेट पीता था 1900 हाई अल्टी में, तो मेरा धुआं, कान से धुआं निकाल सकता था, क्योंकि वो पर्दा फट गया। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जुड़े हुए हैं सब। तो इसलिए क्या है, अब जो पानी हमारे नेज़ल पैसेजेस में गया है, विशेष करके सर्दियों में, या तो जिसमें आपने एक विशेष ध्यान रखना है, जिसका ये ईयर ड्रम रैप्चर्ड है, कुछ है, उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना, पानी अच्छे से सुखाना है। तो उसमें नहीं तो फिर इन्फेक्शन का या कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने आते ही हमने सूत्र नीति, फिर आपने जल नीति किया, फिर आज एडवांस जल नीति थोड़ा मुँह से किया आपको जो बताया। अब उसके बाद पानी को सुखाना, ये बहुत बहुत अनिवार्य है, इसको आपने नहीं भूलना, नहीं अन्यथा लाभ की बजाय हानि हो सकती है। आपको ज़ुकाम होएगा दिन में, अब जब आप प्रारंभ में नीति करेंगे कुछ ज़ुकाम आपको लगेगा, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो ये आपने देखिए। उसके बाद मकसद है हमारा सिर्फ पानी को सुखाना। आप देखिए ऐसे मैं पकड़ा है इसको, कुछ नहीं, आपने ज़रूरी नहीं खड़े भी होना। ये देखिए कितना रेशा बाहर आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये मैं माला थोड़ा, ओम रुद्राक्ष जय, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि,
लेट्स मेडिटेट इवन जय महाबुद्धम। सो हियर अब देखिए, जैसे आपने खड़े होना है, ये थोड़ा बेटर है कि आप जब ज़्यादा जर्क देते हैं थोड़ा सा एंगल आपका बना रहे। आपके जो ये नीचे के ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, उन पे जैसे देखिए मैं ये कर रहा हूँ, देखिए रेशावी भी बाहर आ रहा है। ऐसे आपने 10-20 बार ये कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक नासिका को बंद किया, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पूरा सांस छोड़ के आप उद्यान बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं। कम समय में आप बहुत सी चीज़ें साथ साथ आपकी होती रहेंगी। फिर एक समय आएगा मूल बंद उद्यान बंद ये स्वतः ही लग जाते हैं। वो बड़ी, जैसे देवरा बाबा जी का उद्यान बंद परमानेंट ही लगा रहता था। वो मृगशाला पहनते थे, उसका यही कारण था कि वो उनका अंदर जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी से उनका पेट चिपका रहता था। उद्यान बंद, पक्षियों का उद्यान बंद उड़ते समय लगा रहता है। तो हम रहस्य की बातें करते रहेंगे। तो ये आपने, जैसे अब मैं थोड़ा शर्ट उतारूंगा ताकि आपको पता लगे कि कैसे, नो आई कैन शो यू लाइक दिस। अब दूसरी नासिका देखिए, ये देखिए। फिर इसको तेजी से, ये जैसे अनुलोम विलोम है, ये कुंडलिनी जागरण की क्रिया भी है। देखिए इसको तेज कर रहा हूं मैं, और पेट को अंदर लाना, बाहर लाना, झटका देना। जैसे हम कपालभाति में सांस लेते नहीं, सोचते नहीं, सिर्फ फेंकते हैं सांस बाहर। इसमें आपने लेना भी है, छोड़ना भी है। ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। दोबारा देख लीजिए, पानी भी सूख रहा है। स्लो में देखिए, पहले चंद्र स्वर से लिया, सूर्य से छोड़ा, सूर्य से लिया, चंद्र से छोड़ा। अनुलोम विलोम की तीव्र गति प्राणायाम। ये वंडरफुल। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से आप उद्यान बंद का अभ्यास भी आपने साथ साथ करना है। अभी जब आप ये देखिए कर रहे हैं, पानी सुखा रहे हैं आप, इसमें आपका कपालभाति, भस्त्रिका, ये एक मिक्सड अप कुंडलिनी, हम इसमें डिटेल में जाएंगे प्राणायाम में। प्राणायाम की अंतिम परिणति केवली कुंभक। ये सब क्लिनजिंग क्रियाएं हैं, चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके अलग प्रभाव हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हीट बैलेंस होना, रोगों से मुक्ति। देन आज हम एक प्राणायाम ज़रूर करेंगे जो कोविड-19 को शील्ड करने के लिए है, उज्जयी का आज हम अभ्यास करेंगे। और ये यहाँ जब आप नासिकाओं से आप पानी सुखा रहे हैं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये सारी क्रियाएं सिर्फ 15 मिनट में समाप्त हो जाती हैं। जब आप अभ्यस्त हो गए, 2 मिनट नेति के लिए, फिर सूत्र नेति, जल नेति, देन नासिका रंध्र, ये सिर्फ आपका प्रिपरेशन है आपके आसन और प्राणायाम में शुरुआत करने के लिए। तो ये इसीलिए अष्टांग योग में ये नियम बने हैं। सो अब देखिए आपने क्या करना है, इसी में जैसे अभी आप ये कर रहे हैं, इसको आप जब पूरा सांस बाहर छोड़ देते हैं, उसमें बाह्य कुंभक इसको कहते हैं, बाह्य कुंभक। सो वेल, फॉर द इंग्लिश पीपल आई वुड लाइक टू मेक दिस वीडियोस विल, बिकॉज यहाँ भारत, हमारा जो यूनिक प्लेनेट है भारतवर्ष, इसके दूसरी ओर हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, है ना, इस प्लेनेट के दूसरी ओर अनेकों, तो वहाँ इस समय तो उनसे भी हमारा ये योगा का हम इसको रात में भी हम ट्राई करेंगे उनकी कन्वीनियंस के लिए। सो हाँ, तो यहाँ मैं जो आपको बता रहा था, जब आप ये क्रिया कर रहे हैं तो पूरा पानी सूख रहा है, और यहाँ जब आप बाह्य कुंभक करेंगे, बाह्य कुंभक हम धीरे धीरे जाएंगे डीप में, लेकिन अब यहाँ सुखाते समय भी आप पानी देखिए, आपने आखिर में पूरा लंबा छोड़िए, पूरा खाली कर दीजिए, पूरा डायफ्राम तक लंग्स को, और खाली। यहाँ से फिर आप उद्यान बंद लगा लीजिए बैठे बैठे भी। ये पूरा सांस तो मैं छोड़ ही चुका हूँ। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए, बैठे बैठे यहीं से थोड़ा अग्निसार क्रिया कर दी। आई होप आप समझ रहे हैं इसको। तो ये बाह्य कुंभक,
जो श्वास हम पूरा बाहर छोड़ के रोकते हैं फिर बंद लगाते हैं, तो ये आपका बाह्य कुंभक। इसमें देखिए पानी नाक से सुखाने की क्रिया, उसके साथ साथ हमने ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग का भी एक छोटा सा ऐड कर लिया, क्योंकि हमारा मकसद धीरे धीरे हमने वहीं जाना है, मोक्ष की प्राप्ति, कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रों का ज्ञान। अभी ये मैं दोबारा आपसे कहूँगा, इनको अनुभूत करना। ये हमारे जो शरीर की एनाटॉमी यानी कि ये जो अन्नकोश है, इसका डायसेक्ट करने से, पोस्टमार्टम करने से, इसमें एनाटॉमी में, हमारे शरीर विज्ञान में, इस शरीर विज्ञान में ये चीज़ें दृश्यमान नहीं हैं, ये सूक्ष्म हैं। जैसे हमारी भावनाएं, प्यार सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता। ओके, जेलसी सूक्ष्म है, एंगर सूक्ष्म है। तो इस तरीके से जो हमारी ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये इससे भी सूक्ष्मतर आपका, जैसे मन सूक्ष्म है, मन इंद्रिय है। दोबारा मैं आपको डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पर्पस ये मात्र एक हमारे टूल्स हैं। योग का आसन, चाहे वो खिचड़ी है, वजौली है, अंतिम परिणति, हमने इस दृश्य जगत से, इस स्वप्न मात्र से निकलना है। और इस स्वप्न में हम डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मैं भी इस समय उस स्वप्न का एक कैरेक्टर हूँ, आप इस स्वप्न के कैरेक्टर हैं। ये भगवान की लीला, हम में भगवान ही स्वयं नारायण ऑपरेट कर रहे हैं। वो अपने आप को दोबारा से अपने ही रूप में जाने के लिए इस पिंड से, जैसे एक पानी की बूंद समंदर में मिलाने के लिए भगवान की ही प्रक्रिया है। वो स्वतः ही नारायण ऐसा कर रहे हैं। सीखना, सिखाना, ये सब एक ड्रिल है। एक स्वप्न में हम मात्र एक कैरेक्टर्स हैं, जिसको पात्र कहते हैं। इस समय हम सब पात्र हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म, चाहे हम किसी को सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं या कुछ मार रहे हैं या जी रहे हैं या लड़ रहे हैं, ये सब स्वप्न के पात्र हैं। इनका कोई वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं। अब आप जाएंगे क्वांटम फिजिक्स में, विज्ञान भी वहीं पहुंच रहा है। विज्ञान कोई अलग नहीं है, वो भगवान ही है। तो उसमें जाने के लिए सूक्ष्म में आपको बता रहा था कि ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, कुंडलिनी जागरण, सहस्त्रदल कमल, उसके ये प्रतीक हैं। सहस्त्रदल कमल 1000 पंखड़ियों वाला कमल। फिर इसके अलग अलग इसको तत्वों से जोड़ दिया है, रंगों से। तो ये एक थ्योरी है, हमें इसका मात्र ज्ञान अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये एनाटॉमी में आपको इमेजिनेशन करने से, विचारों से आप उसको नहीं जान सकते। वास्तविकता ये है, इसमें सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, यानी कि जो इस एनाटॉमी में नहीं है। ईड़ा पिंगला, ये तो स्वर हैं, तो कहाँ रीढ़ की हड्डी, टेल बोन, कहाँ स्वस्थ, तो ये चीज़ें आपकी अति सूक्ष्म हैं। मन से भी, बुद्धि से भी, गुण से भी ये सूक्ष्म है। तो इनको अनुभूति का विषय है। हम जब तक मन तक सीमित हैं, हमारा ये कहना कि हम मूलाधार जगा लें, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। हम कुंडलिनी, हम स्वयं ही कुंडलिनी हैं, हम स्वयं ही, मैंने कल भी आपको बताया था। तो आज हम डिस्कशन साथ साथ चल ही रहा है, ये गीता का एक है। तो जो गुणों में गुणों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जैसे ये मुझ में गुण है कि भगवान की कृपा से कुछ योग मिला, किसी में गुण है कि उसमें बिजी हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये उनके गुण हैं, उनमें सरस्वती विराजमान हो रही हैं। मुझ में थोड़ा योग में दूसरे प्रकार से योगा, तो ये डिफरेंट, किसी में कुछ गुण हो सकता है, किसी में गुण इस संसार में पैसे हैं किसी के पास, किसी को खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसे वहाँ मजदूरी करनी होगी। तो ना वो पैसे वाला बुरा है, ना मजदूर, वो है ही नहीं। ये सिर्फ पिंडों में अलग अलग गुण हैं जो एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है। ये श्री भगवान कृष्ण का मैसेज है, ना जाने किस श्लोक में तो गीता आप में फिर इस तरीके से स्फुरित होती है। ऐसा नहीं कि वो हवा में से आती है, आपको पढ़ना होगा। स्वयं को भी हमने धोखा नहीं देना। इस दुनिया में हवा में से कुछ नहीं आता है, स्वतः ही हमारे केंद्र जागृत होते हैं। तो और अब गीता आप वास्तव में पढ़ना ही होगा। मैंने कई बार पढ़ी होगी गीता, तो अब दिमाग में वो विज्ञान है, तो अपने आप ही फिर वो समय अनुसार, स्थिति अनुसार वो आपको हैंडल करता है। विज्ञान भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, विराट स्वरूप, जो शरीर में रूप में नहीं, ज्ञान कोश में। तो ये आपका पानी देखिए, हमने सुखाने के बाद आपको मैंने यहाँ हम अभी तैयार हुए आसन की ओर स्विच करने के लिए। अब ये एक नियम बना लीजिए आप। ये होगी आपकी क्रिया मात्र 10, 12, 15 मिनट की। जल नीति, सूत्र नीति, ये सुखाना थोड़ा सा आप इसकी, आपके जो पानी सुखाने के साथ साथ ही आप जो है कपालभाति भस्त्रिका भी कर सकते हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने पहले यही करना है फिर ऐसा, उसका अपनी लाइफ के अनुसार आप अपना बाद में पैकेज बनाइए।
वो हम करेंगे। इन क्रियाओं के बाद एक बड़ा जो आपको मैं अट्रैक्शन बताऊंगा, जो वज्रौली की ओर भी हम आपको अग्रसर कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टेप उसी की तरफ है। सो उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने साइंस की लेबॉरेटरीज़ में जाना है, उसको बचपन से ही हमने केमिस्ट्री का उसका सब्जेक्ट होना है। ओके, तो इसी तरीके से यदि हम वज्रौली और खेचरी की ओर जा रहे हैं, या हम मात्र सिर्फ शारीरिक बीमारियों से, व्याधियों से तो स्वतः ही छुटकारा होगा यदि आप उच्च क्रियाओं में जाएंगे। फिर उनको सोचना नहीं है कि अब मैंने कमर दर्द के लिए क्या करना है, एग्जाइटी के लिए क्या करना है, वो अपने आप ही होगा। अदरवाइज़ उसके लिए भी आसन है, विभिन्न हैं, उसमें भी हम स्विच ओवर करेंगे। तो अब हमारा विषय, अब हम आज अगला स्टेप जो हमने ऐड किया, आज ये हमने जल नीति सूत्र नीति की थी, आज हमने ऐड किया जो मुंह से एडवांस जल नीति, वेरी सिंपल। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम की ओर और आसनों के ज्ञान की ओर चलेंगे। और कुछ दिनों में जैसे जैसे आप देखेंगे जिनके आसन सिद्ध हो रहे हैं, आपको कुंडलिनी अवेकनिंग की बहुत एडवांस मेडिटेशंस में जो कंदराओं में जो योगी करते हैं, ये देखिए आज ये जो सारा आप विज्ञान देख रहे हैं, मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, ये सब ऋषि मुनियों की देन है। आज आप विपासना करते हैं, आप क्रिया योग करते हैं, आप कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं, आप पावर योगा करते हैं, आप कुछ और योगा करते हैं, वो सब उन्हीं ऋषि मुनियों की उसी अविरल धारा हिमालय पर्वतों से ही आ रही है। उसकी एक धारा ये देखिए आप, ऋषि मार्कंडेय जी। तो ये हमने क्या करना है, इसको आपने इसके सूक्ष्म में चलते जाना है। जब आप जहाँ से ये पूरी क्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो आपकी जो वंडरफुल क्रियाएं हैं, ये क्रिया योगा, विपासना, ये सारे कहलाते हैं। हंसा जाप है, अपान सती योग है। हम आपको उसी डील में, उसी के सोर्स से, जहाँ से ये चीज़ें हिमालय मान लीजिए जहाँ से इसका उद्गम स्थान है, वहाँ से हम आपको वहाँ तक धीरे 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 ले जाएंगे। तो ये सारे प्राणायाम हैं, ये प्राणायामों का ही एक वर्जन है। तो पहले हम उन प्राणायामों में पूरे पारंगत हो जाएं, फिर आपकी हर क्रिया आपकी अपनी है। तो हम फिर उतरेंगे। पर्पस है जो आपसे मैंने भी, सिंबॉलिक है, सिर्फ प्रतीकात्मक है। मूलाधार क्या है, मूलाधार को खोलने में ही जन्मों लगते हैं, कारण और एक जन्म कर्मोवश वो हो सकता है। सो धीरे 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 ये अनुभूति का विषय है। जैसे एनाटॉमी में नहीं है, तो ये कैसे सुषुम्ना खुलनी है, आपने हमें फॉलो करते जाना है। अब हम इतनी बातें करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप में आत्मविश्वास देने के लिए कि आप, हम लोग जो टैकल कर रहे हैं, जो हमारा जो एक, यदि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ एक टीचर के रूप में, और एक टीचर और एक स्टूडेंट्स में, या दोस्तों में, या एक योगी और योगी में, ठीक है एक योगी योगी से मिलता है, जैसे राजा राजा से मिलता है। एक योगी एक स्टूडेंट से मिलता है, टीचर तो डिफरेंट है, सत्ता एक ही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर अब हम धीरे धीरे इसका व्याख्यान कम और एक धीरे धीरे करते करते एक पैकेज में पहुंचेंगे, जहां से हमें अब मास्टरी हासिल की है अपने आसनों पे। हमारी जो क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग क्रिया, बातों से परे जहां हमारा रूपांतरण होगा, तो उसके लिए हम ये सारे आसन वहीं जा रहे हैं जहां हम अब आज का हम एक तीसरी चौथी चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं आसनों के ऊपर। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। देखिए आने वाले समय में वाईफाई है, हम फ्रेंड्स हैं, कुछ गोपनीय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। तो इसमें है कि हम जैसे जैसे प्रयास करेंगे कि वो ये भी एक वातावरण खुला है, तो आपका बेस्ट प्लेस ऑक्सीजन बहुत मात्रा में है। हम ये गुफाओं से करेंगे, फिर नदी से करेंगे। थोड़ा हम अरेंजमेंट कर लें इसका कि वाईफाई जहाँ तगड़ा है, फिर ऑनलाइन। सो आज हम स्विच कर रहे हैं आसन के ऊपर, यम नियम आसन। यम नियम हम डिटेल में जाइए आप बुक्स में, हम समय अपना उसमें तोता रिटर्न बातों में ना जाया करें, मेन हम पकड़ते जाएं। जैसे माता की गोद में बिना ग्रामर सीखे बच्चा बोलने लग जाता है, तो गुरु कृपा से आप गुरुओं की आपको बाद में आप ABC सीखते हैं, पहले माता की गोद में आप बोलना पहले ही सीख जाते हैं। भाषा अपनी मातृभाषा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता उसमें, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं होता, जैसे मम्मी बोलती हैं हम भी सीख जाते हैं। तो ऐसे ही हम डिस्कशन, योगा, पुस्तकें, ये सब भरमार है, आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे। तो सिवाय आपकी बुद्धि में एक, जैसे आप सॉफ्टवेयर भरने के अलावा वो कुछ नहीं है।
जब तक कि उसका हमने एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ लेबोरेटरी में। तो हम उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। तो हमारी ये क्रिया के बाद अब यम नियम, पहली चीज़, जिन्होंने डीप में जाना है वो भगवान की कृपा से ही होगा, कर्मों से ही होगा। विजौली खेचरी में जाना है, घंटों आश्रम हम जैसे वहीं जा रहे हैं, रोज़ रोज़ आप देखेंगे उनको, उनके लिए फिर एक बहुत आपने प्रयास करना है कि आप वेजिटेरियन हो। और बहुत जल्दी जो तरक्की करना चाहते हैं, वास्तव में कुछ रोगों से पीड़ित हैं, सब कुछ आप क्योर होएंगे यदि आप फ्रूटेरियन हो सकते हैं, यानी कि फलाहार। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं, जैसे मैंने प्रयोग किया था 14 साल, उसमें फलाहार भी था, मेरा 1-2 साल आपका ब्रिदेरियन पानी पर ही था, लेकिन मुझे क्रियाएं प्राप्त भगवत कृपा से खेचरी और ये, तो इससे हम रह सकते हैं। आपने ये प्रयोग नहीं करने हैं कि आप ब्रिदेरियन होना चाहें और आपका जो लाइफस्टाइल है, गृहस्थ हैं। अब मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो मुझे मिले, पहले पवनाहारी होने का प्रयास किया, इंटेस्टाइन वैसी बनी, बाद में मम्मी का प्यार आया, जागा, फिर रोटियां खा ली तो इंटरेस्ट वो पूरा दे हैड टू दे वर गॉन। 2 कश्ती में चले। तो फिर ये जिसने एडवांस जाना है उनके लिए हमारे अलग प्रकरण है। आप मुझसे डिटेल में बात कीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। आपने यदि जिन्होंने डीप जाना कि हम करेंगे वही जो हम हैं वही करते हैं। यदि शेर है वो घास खाएगा नहीं, शेर तो शिकार ही करेगा। तो आपने भी शेर में ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये शेर, ये सब लस्ट, ग्रीड, एंगर, हिपोक्रेसी, ये शेर का भोजन नहीं है। ये तो सिर्फ मृत्यु लोक के तुच्छ जीवों का हम सब एक ही हैं, लेकिन हम तब तक तुच्छ हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में जब तक हम घिरे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब उसको छोड़ना होगा। फिर आप शेर हैं, फिर आप घास खाएंगे नहीं, आपको घास में खाने का मन ही नहीं होगा, आप शिकार करेंगे। और वो शिकार क्या है? समाधि है, केवली कुंभक है, एजलेस होना है। आपका भाई गुरु भाई 65। देखिए इगोइज्म नहीं, आप यू कैन मेक आउट मेरे कि मैं इगोइज्म में नहीं बोल रहा हूँ। आपने भी हमें फॉलो करना है, ऐसे होना है कम से कम। हाँ, योग में आपने जो डीप में जाना चाहते हैं, अनेक इंस्ट्रक्शंस, आपने विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर, यानी कि कई बार ये अच्छी चीज़ें हैं सारी, लेकिन वो अन्न कोश तक सीमित हैं। अन्न कोश तगड़ा होएगा, मस्कुलर बिल्डअप होएगा, तगड़े होएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सूक्ष्म प्रणालियाँ, वो पूरी एनर्जीज हमारी जो है उनको फिर आप समझते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं मस्कुलर। तो जिसने बहुत सूक्ष्म योग करना है वो रोगों से वैसे ही परे है, सूक्ष्म शक्तियाँ मन में हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक, फॉर एग्जांपल जिम में बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा वगैरह करना नहीं, बॉडी शेप बनाइए आप, लेकिन यदि आप हेड स्टैंड घंटों करना है, फिर आपने समाधि में जाए तो आप ज़्यादा थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत अधिक नहीं करना है। जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, फाइट कर रहे हैं, राउंड डंड बैठक बहुत ज़्यादा मार, उसमें ये इसमें थोड़ा सा आपका वर्जित है, बहुत ज़्यादा, है ना। सो वॉकिंग कीजिए, रनिंग। सो जिम्बा, बाय द वे, व्हाट्स द टाइम in your computers? Anyway, so we'll make more precise, in the coming future. So we'll लेकिन अभी जो हमारा मकसद है, आपने इन चीज़ों के ऊपर माहर होना है। ये सब जैसे हम बचपन में 3 पहिया गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी उस प्रकार से है, इसलिए समय इतना लग रहा है। आप 3 पहिया गाड़ी के बाद 2 पहिया पे आप बैलेंस बनाना सीख गए, फिर आप देखिए कैसे मोटर बाइक चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, पीछे आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, आपको फिर ध्यान नहीं है कि आप बैलेंस हो, बचपन में सीखे थे, जो आपके पापा ने आपको बैलेंस करना सिखाया था। तो ये सारा हमारा कुछ नहीं है, दिया हुआ है ना। तो आप फिर बैलेंस बनाना सीख गए, फिर आपको ज़्यादा इसमें आपका समय इन षट कर्मों में ज़्यादा नहीं लगेगा, आप परमानेंट ही उसमें वही भगवान कृष्ण का जो हर समय आप भगवान में लीन रहेंगे, इसमें जीवन में रहते हुए भी। आई कैन सी, जस्ट लीव इट लेटर, आई कैन सी। एनीवे, सो भगवान में उसमें हमेशा ट्रांसेंड करना, वो अवस्था आपकी प्राप्त होगी जैसे आप बैलेंस बनाना सीख गए। तो आज हमारा मकसद है इसको हम और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में और प्रेजेंटेबल करेंगे, क्योंकि ये मेरा अभी इस समय मेरा 1 मैन आर्मी है। ये हमारे एक लड़की हेल्प कर रही हैं। सो धीरे धीरे जैसे कुछ लोग हैं, अगर भगवान की इच्छा है तो हम इसको और साइंटिफिक वे में आपको दे सकें, कम समय में बहुत अधिक दे सकें चीज़ें। सो हियर जो हमारा अगला जो स्टेप है, उठे आप,
मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। और एक फिर हिंदी का बात कीजिए, बचपन की याद आ रही है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत नहीं रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो इसको उन्होंने सिमली दिया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, उसको उन्होंने सिमली दी है उदाहरण की। जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी रगड़ती है, तो कुएं से लिया गया है। जब हम पानी खींचते थे तो पत्थर पे रस्सी खींचती है, शिल पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो अभ्यास से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट है। तो बातों का विषय नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में करते जाएंगे। तो यहाँ से हम आज स्विच ओवर करेंगे आसन के ऊपर। आसन सिद्धम मंत्र सिद्धम। देखिए हम लोग पर्याप्त समय है हमारे पास, आपने अपना एडजस्ट करना है। मैं अनुकंपा से माता भगवती यहाँ लाई हैं, मार्कंडेय ऋषि जी हैं, अमेरिकन्स लाए थे। हमारे पास पर्याप्त समय है क्योंकि मेरा भी इसमें योगाभ्यास होता है, मेरी परफेक्शन होती है। आप अपना एडजस्ट कीजिए, 2 घंटे नहीं, हम लोग कभी भी लाइव हो सकते हैं। आज हम जा रहे हैं अभी आसनों के ऊपर। यम नियम मैंने आपको बताया, तो आप पढ़िए पुस्तकों में, उसको पालन कीजिए। और इसमें सरेंडर, यम नियम में सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान को सरेंडर कर देना। सरेंडर करना मीन्स बहुत बड़ा। सरेंडर का मैं आपको डीप में बताऊंगा। सरेंडर कैसे हो सकता है, ये फल है उसको रख दिया, ये इजी है। लेकिन असली सरेंडर है जब विचारों का सरेंडर। विचारों का सरेंडर होना मतलब, यदि वास्तव में यदि आप विचारों का सरेंडर करते हैं, आपका केवली कुंभक स्वतः ही हो जाता है। शरीर मात्र दंडवत हुआ, फिर विचार दंडवत हुए, आप शवासन स्वतः ही हो जाता है आंतरिक। तो ये सरेंडर की परिभाषा है, पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर छोड़ देना, कर्मों की इच्छा ना करना। आप जो कुछ कर रहे हैं श्री नारायण श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना है। फिर उन्हें मालूम है कि उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट करना है। सो ये यम की, मैं यम नियमों के अंतर्गत बात कर रहा हूँ आपको। प्रत्याहार, सो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो, आप कोशिश कीजिए जीव हत्या ना हो, पाँव के नीचे भी ना आए। बुद्धम शरणम गच्छामि। आप देखिए जैन मुनि कैसे करते हैं योग मार्ग पे। हम किसी पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट आपके प्रोफेशन की डिमांड है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं जो ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं। अब आइए हम आसन के ऊपर। आसन का मतलब, आसन एक तो जो हम शरीर का जो पोस्चर्स बनाते हैं, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों से ही 84 लाख आसन है। फिर उसमें 32 और लास्ट में ये 4 आसन। फिर हम ज़्यादा आपको थोड़ा सा बोलेंगे, फिर आसन पे चलेंगे। उनमें आपका सबसे बड़ा आसन है सिद्ध आसन। सिद्ध मतलब परफेक्ट हो जाना। सिद्ध आसन सबसे बड़ा आसन है। उसके बाद पद्मासन है, उसके बाद आपका सिंहासन है, फिर वज्रासन है। ये इसकी इस क्रम में है ये। तो हम एक एक आसन को बहुत डिटेल में और बहुत डीप में जाएंगे, और फिर आप में क्या फिट होता है, फिर आपके स्टैंडिंग पोस्चर्स, बॉडी फिटनेस के लिए क्या करना है। और ज़रूरत नहीं, यदि आप खेचरी वज्रौली ये सब करते हैं, बड़ी प्राणायाम, आपको सिर्फ फिर एक आसन की ज़रूरत होती है। षटकर्म किया, फिर अधिकतर आप एक आसन में सिद्ध में आना है। तो सिद्ध आसन, पद्मासन, आपका वज्रासन, सिंहासन। ओके, तो इस तरीके से आज हम स्विच कर रहे हैं आसनों के ऊपर। आसन हम जिसके ऊपर बैठते हैं वह आसन कहलाता है। अब यहाँ से विज्ञान की प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा विश्व एनर्जी का खेल है। चाहे हम हैं, चाहे विचार हैं, चाहे सूर्य है, नारायण हैं, चाहे चंद्रमा है, ये हमारे परमपिता परमात्मा, उनकी लीला के अनुसार ये एक एनर्जी का रूपांतरण है। कहीं कोई मनुष्य है, कहीं कोई पशु है, कहीं अग्नि है, कहीं पानी है। अब देखिए सिर्फ ये डिफरेंट एक एनर्जी की फॉर्म है। और फिजिक्स में एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो टोटल उसका जो क्वांटिटी एनर्जी, ना तो ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना ही क्रिएट की जा सकती है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं उस एनर्जी के। ये कोई न्यूक्लियर एनर्जी में है, कोई सोलर एनर्जी में है, कोई थॉट्स में है, कोई मेडिटेशन में है। पहले ये एनर्जीज योगियों ऋषियों में फ्लाई करना, आई मीन क्लियर वॉइस होना, यानी आपकी जो आजकल आप करते हैं, ये जो रेकी करते हैं, ये ट्रांसमिशन करना टेलीपैथी से। सो ये वो उन शक्तियों का रूपांतरण है।
ये विज्ञान में एनर्जी उतनी की उतनी ही है। सो ये मैं आपको आसन की तरफ ले जा रहा हूँ कि आसन क्या है। तो अब देखिए, आप इतना ध्यान से सुन लीजिए। आसन, हम उस एनर्जी की हम भी फॉर्म है। सो अब जब हम एनर्जी को रेज करना या उस एनर्जी बड़े प्राण शक्ति में जाना, अब ये एनर्जी छोटे फॉर्म में है। हमारा सिर्फ हम अन्न कोश और छोटे से विचार और ये मृत्यु लोग, थोड़ा 50-60 साल का जीवन, योगियों किसी का अधिक हो सकता है, फिर देन अल्टीमेटली हम फिर पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश मतलब आप जहाँ जहाँ ये खाली स्पेस है, ये चिदाकाश जहाँ ब्रह्मांड बनते हैं, तो पांचों तत्व पांचों में विलीन होते हैं। अब यहाँ से हम साइंटिफिक अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। सो ये आपका जो साइंस है, विज्ञान है। आसन मतलब पोस्चर। 84 लाख आसनों में से उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से, ऋषि मुनियों ने, लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण ने इन आसनों को एक वैज्ञानिक पद्धति दी है। सिद्ध आसन कैसे उन एनर्जी, अब देखिए मेरी एनर्जी बात कर रहा हूँ, एनर्जी का ये रूप जो एक ब्रह्मचर्य के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, अब ये मेरी भाषा के रूप में, ये हमारा जो इंटरेक्शन होना है गुणों में गुणों का, ये एनर्जी इस तरीके से चल रही है। मेरा अस्तित्व, हमारा अस्तित्व एनर्जी है। अब इससे ऊपर एनर्जी जाएगी तो इस तरीके से ये आपका होगा चक्रों और एनर्जी का खेल। कैसे उसमें घुसना है हमने धीरे से। आसन 84 लाख आसन, मेन 4 आसन, फिर किंग आसन, हेड स्टैंड, जो हम करेंगे, जो आपके भाई का आसन मेन है, योगियों का विपरीत करनी, वीर रक्षा, ट्रांसेंड में जाना, वो हम डिटेल में जाएंगे आज, क्योंकि हमने इस डिस्ट्रिक्ट में हमने 1-2 क्रियाएं रोज़ जोड़नी है और फिर क्रियाएं होनी है, बातें नहीं होनी है। फिर आपने 2 घंटे शीर्षासन में समाधि में जाना है, किसी ने वज्रौली करनी है। सो अभी हम बातें और ये व्याख्यान इसलिए है कि हम उस चीज़ को पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले कि हमारी जो बाट किस बाट है। अनेकों बाट हैं। आप इस शादी करनी है, बच्चे हैं आपकी बाट, बच्चे आपने डॉक्टर्स बनाने हैं, योगी बनाने हैं, साइंटिस्ट बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, या आपने कुछ कौन क्या बनेगा उसके कर्मों की गेम, या आपने योगी बनना है, इसी जन्म में एजलेस होना है, कितने साल जीना है, 500-700 फॉल्ट नहीं फाइंड करनी है। ये फाइंड नहीं करने की 500 साल जी के हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते। यदि हम कर सकते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ है, उससे सीख लो थोड़ा सा है। यदि मेरे कर्मों में ब्रह्मचर्य है तो मैंने गृहस्थ को फॉल्ट नहीं फाइंड करनी, मैं वहीं से आया हूँ। बड़े बड़े योगी वहीं से आए हैं, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, बड़े बड़े योगी जितने भी हैं, सब माता के कोख से ही जन्म होता है, गृहस्थ से ही। तो ये सब बातों का विषय है, इमोशनल होने का नहीं है, हमने वैज्ञानिक में उतरना है। जैसे डॉक्टर है, वो पेशेंट की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं देता, उसको एनाटॉमी पता है, कहाँ स्विच ऑन करना है, कब क्लोरोफॉर्म देना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो ये इट्स अ सर्जिकल ऑपरेशन टू रीच एंड द किल द एनिमीज। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बातों से नहीं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शस्त्र, ये बातों नहीं, उनमें उतरना, उनमें घुसना, रूपांतरण होना। सो आसन। दूसरा आसन, आसन जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो है कुशा आसन। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना गया है, प्रतीकात्मक है। सो ये सारी चीज़ें सत्य हैं। यदि आप कुशा आसन पे बैठ सकते हैं, वेल एंड गुड। आप नहीं अफोर्ड, आपके पास उपलब्ध है, तो यहाँ आपको ऊन की, भेड़ की ऊन का जो है आसन सर्वोपरि है। यानी आप कंबल पे बैठ सकते हैं। आप हिमाचल के हैं, भारतवर्ष के, वहाँ पट्टू कहते हैं उनको, भेड़ की ऊन के मिलते हैं। कश्मीर है हमारा, ओ वंडरफुल, द हेवन ऑन, आई मीन, ओ वंडरफुल, स्वर्ग। तो वहाँ चिनार के पेड़ हैं, वहाँ के भी वहाँ से भी पट्टू आते हैं, उस पर आप बैठिए। हाँ, यहाँ आसनों की, आपने कदाचित पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठ के मंत्र जप और एनर्जी राइजिंग नहीं करना है। आप निश्चित ही रोग के आप रोग को आमंत्रित करेंगे। पत्थर के आसन पे, लकड़ी के आसन के ऊपर आप करेंगे दरिद्रता। दरिद्रता मतलब कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियली या मेंटली या दरिद्र, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। और दूसरा, आपने ब्रह्मचारी जो है वो शेर की खाल पे बैठ सकता है, ब्रह्मचारी, अन्यथा उसको उसके लाभ नहीं, उसको कुछ और होगा।
और जो सांसारिक कर्म करना चाहते हैं, योगा में सब है, वो बाघ की खाल को उसका आसन माना गया है। बाघ की खाल, हिरण की खाल अति उत्तम है। श्री भगवान कृष्ण की गीता को देखिए, ना ऊंचा स्थान ना ज़्यादा नीचा। मुझे संस्कृत नहीं है, उसका मतलब यही है कि आपका जो आपने चयन करना है, वहाँ जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कीट पतंगे मक्खी मच्छर ना, ज़मीन से बाज, ये टेबल इतना ऊंचा हो सकता है हाँ, ना अधिक ऊंचा हो। उसके ऊपर आपने पहले अच्छा लिपाई करके गोबर से गऊ के कीटाणु मुक्त करके उसके ऊपर आपने फिर आपका जो श्री भगवान कृष्ण गीता में देखिए आप, उसमें मृगशाला, आपका वस्त्र और आपका जो कुशासन, उसमें आप उसका देख लीजिएगा अगली पद्धति कैसे है। पहले क्या कुशासन रखना है ज़मीन पे, ऊपर लास्ट में हिरण की खाल है या हिरण की खाल पे कुशासन है, फिर वस्त्र है। वो एक अति उत्तम है वो आसन। सो हाँ, ये हो गया आसन। एक ये आसन हो गया, शरीर के आसन हो गए। अब आसनों के ऊपर आज हम जाते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सिद्ध आसन। उसके बड़े गहन से हम जाएंगे, उसके सूक्ष्म में जाएंगे, और फिर किसने करना है, कितना करना है, फिर हम वो देखेंगे। सो हियर वी गो। हम थोड़ा कैमरा एडजस्ट करेंगे बिकॉज आज हमने ये अपना स्वतः ही मैंने एक प्रयास किया है, छोटा सा एक, ये हमने एक योगा अभ्यास का आप इसे कह सकते हैं। टेबल हम एडजस्ट करेंगे कि मैं आपको पास से दिखा सकूं। सो हियर वी गो। अब जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो अष्टांग योग का नंबर 1 आसना, सिद्ध आसन। सिद्ध इंग्लिश में परफेक्ट करना, योगी इसे करते हैं। गृहस्थों ने इसे 15-20 मिनट से अधिक नहीं करना है। उसके मैं आपको रीज़न बताऊंगा। पहले आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कि मैं किस प्रकार से सिद्ध आसन को मैं कर रहा हूं। जो इसमें देखने वाली बात जो है, ये देखिए, ये पहली बात देखिए, यहाँ बाली में सूर्योदय हो रहा है। ये पूर्व दिशा है, ये पीछे आपकी पश्चिम है, बाएं आपका उत्तर है। बाय द वे मैं सेल्फी में हूँ तो ये आपको बायां दायां दायां बायां दिख सकता है। तो ये मेरे सामने सूर्यदेव हैं, सूर्य, और पीछे पश्चिम हो गया, बाएं में आपका उत्तर हो गया, दाएं में दक्षिण हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। इसको हम हिंदी में कहते हैं ईशान दिशा। देखिए, आप बचपन में आपने ज्योग्राफी में सीखा होगा, मैप रीडिंग में, सूर्य की ओर आप मुंह करके खड़े हो जाते हैं। आपका पूर्व, पीठ की तरफ पश्चिम, बाईं तरफ आपका उत्तर हो गया, दाईं तरफ आपका दक्षिण हो गया। ईशान दिशा मेडिटेशन के लिए ईशान दिशा कहलाती है, जो आपके पूर्व और उत्तर के बीच में है। जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, यदि इस एंगल को हम 90 डिग्री एंगल बनता है आपका पूर्व और उत्तर, ठीक है, ये पूर्व और उत्तर बना 180 ऐसे पूरा बन जाता है। तो ये आपका पूर्व और उत्तर के जो बीच में एंगल है, यदि आप जाएंगे, वो आज आपका 45 का एंगल, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आप बैठते हैं, तो ये आपकी ईशान दिशा है। तो इस दिशा में आपने बैठ के मेडिटेशन करनी है। जो थोड़े से सांसारिक उसमें जाना, वो पूर्ण उत्तर में जा सकते हैं बैठ के, और पूर्व की दिशा भी उचित है यदि आप पूर्व में। और भक्ति के लिए प्योरली आप जाप कर रहे हैं, ईशान दिशा में बैठिए, यह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब दक्षिण में आप दिशा अधिक मुंह करके नहीं बैठना है। आपकी शक्तियाँ, आपका जो है शक्तियों का विकरण, आपका शक्तियाँ आप लूज करते हैं उसमें। दक्षिण मुखी मंत्र हैं, वो जो मारण क्रियाएं हैं तंत्र में, अनेकों प्रकार की किसी रोगों का निवारण, मारना, उसके प्रयोग अलग हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे बाद में। जब हम क्रिमेशन डाउन के पास कुछ साधनाएं करेंगे तो एक अलग विषय है तंत्र का। तो आपकी जो भैरवी क्रिया है और वज्रौली कैसे, हम बहुत डीप में जाएंगे। तो यहाँ कैन यू स्पीक बाय द वे?
सो टाइम विद द हैंड, हाउ मच इज टाइम? मैं समय जानना चाहता हूँ। दिस इज 20 past 10। ओके, हाँ, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी 10-20 हुआ है। सो हाँ, आज हमारा जो आज का जो हमारा, क्योंकि हम कल नेति आप कर चुके हैं, अब उस पर हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आते ही सिर्फ नेति होएगी। अब हम आसन के ऊपर आपके यहाँ पे आए हैं, सिद्धासन नंबर 1 आसन। इसमें आपने क्या करना है देख लीजिए आप ध्यान से। अब मैं कैमरा थोड़ा फोकस करूँगा, अपने जो मेन चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप मुझे, आई होप यू कैन सी मी। ये या मैं लाइट की तरफ थोड़ा कर लूँगा, दिशा चेंज मैं यदि करता हूँ ताकि आप देख सकें। हाँ, या आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप जान लीजिए, इसको हम कहते हैं सिवनी नाड़ी। ये जो हमारे अंडकोश हैं, ध्यान से देखिए आप इसको, क्योंकि वैज्ञानिक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे लिंग इंद्री हुई, ये हमारे अंडकोश हुए। तो मैं स्त्रियों के लिए अलग से बताऊंगा, उनके लिए अलग है। मैं पहले आप देखिए पुरुषों ने कैसे करना है। आप दोनों टांगें ऐसे फैला लीजिए। मैंने टांगें फैलाई, ये बहुत बड़ा आसन है, इसमें गलती नहीं होनी है। ये इसके परिणाम बड़े ही इसे मिरेकुलस। सो आपने देखिए ये उठाया, आपके जो अंडकोश हैं इनको आप ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, तो नीचे हमारी सिवनी नाड़ी है, हमारे गुदा द्वार और ये आपकी जननेंद्री, इसके बीच में ये सिवनी नाड़ी है जहाँ से हमारा वीर्य स्खलन होता है। तो इसका सिवनी नाड़ी का संबंध सीधा आपके ब्रेन के साथ है, विचारों के साथ है, क्योंकि सिवनी और ये आपका वीर्य, मन, आपके विचार और प्राण एक ही जो हैं कड़ी के मन के हैं। तो अब आई सिद्धासन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखिए, ये टांगें आपने ऐसे चौड़ी की, एक हाथ से आप अपना लिंग इंद्री को, ये आपके जो टेस्टिकल्स हैं, अंडकोश हैं, उनको आपने ऊपर उठाना है। और ये आपकी जो देखिए, मैं एड़ी से अपनी सिवनी नाड़ी को महसूस कर रहा हूँ। हाँ, आप देख पा रहे हैं मुझे, ये देखिए दोबारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे आप थोड़ा सा, आपको चुभे ना गद्दा, तो आप थोड़ा सा हल्का सा कॉटन, ये कोई छोटी सी गद्दी रख सकते हैं ऊपर आसन। ये मैंने सिवनी नाड़ी को अच्छे से भली भांति दबाया, इसको मैंने अंगूठे को यहाँ पकड़ लिया। अब मैंने क्या करना है, फील कर रहा हूँ मैं, देखिए महसूस कर रहा हूँ कि सिवनी नाड़ी दब गई। ये शुरू में क्या होगा, स्लिप होगी, सिवनी उधर हो जाएगी, आपकी एडी स्लिप होगी। ये आपने अच्छे से ये इसको प्रेस कर लिया, गुड। यहाँ से आपका काम है ये अंगूठे को पकड़ लेना ऊपर, हमने इसको छुपाना है इसमें पिंडली और जंघा में। ये और आपकी जो लिंग इंद्री है, अभी आपके टेस्टिकल्स इंद्री इन दो एड़ियों के बीच में आएगी। ये जो दो एड़ियों के बीच में आप देखिए, ये जो भाग है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ है। इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिंग इंद्री इसके ऊपर आई, इस अंगूठे को यहाँ छुपाया। पहले मैं आपको आ जाऊँ सिद्धासन में, ये देखिए इस एड़ी पे ये एड़ी आ गई है, लिंग इंद्री बीच में है, उसको दबना नहीं है, आपने इसको निश्चित करना है। और ये देखिए अंगूठा, ये अंगूठा इसमें छुप गया, ये इसमें जंघ और पिंडली में छुपा हुआ है अंगूठा। मैं आपको भी नज़दीक से समझाता हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग। जो लोग या थोड़ा सा लाइट का मुझे लग रहा है एंगल बदली करना होगा, ये है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने क्या किया है, आई होप यू कैन सी मी। ये मैंने जिस तरीके से अपनी एक एडी से, बाईं एडी से मेरी सिवनी नाड़ी दबी हुई है और लिंग इंद्री इन दोनों एड़ियों के बीच में है। ये अंगूठे देखिए, ये अंगूठा आप देख रहे हैं, ये इसके बीच में पिंडली और जंघा में छुपा है। ये अंगूठा देखिए पिंडली और जंघा में छुपा है। रीढ़ की हड्डी सीधी, ये आपका एक स्टेप हुआ सिद्धासन का। अब रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप षटकर्म कर चुके हैं, आपकी सुषुम्ना लगभग इस समय, अब देखिए मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, ये सुषुम्ना है। जो आप अधिक योग करेंगे आपकी सुषुम्ना नाड़ी बहुत समय चलती रहती है। सो ये आपका सिद्धासन का पहला स्टेप, आप समझें। देखिए एडी मैंने बाईं से दबाई, सिवनी दबी अच्छे से, भी सिवनी जरूर दबी रहनी चाहिए, मैंने ये देखना है। अब दूसरा अगला स्टेप आप आ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। अब मेरी हाथों की पोजीशन देखिए, इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं सिद्धासन में, उसके गुण अलग अलग हैं। यहाँ हम थोड़ा चलते हैं आगे, ये देखिए हियर,
ये एक है, यदि मैं अपने हाथों को मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करने में थोड़ा परेशानी आ रही है। एनीवे, ये देखिए, ये हाथों की पहली मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। आप इसको, ज्ञान मुद्रा को इस प्रकार से घुटनों पे रख सकते हैं। ये एक है, इससे हमारी गरिमा शक्ति बढ़ती है, शरीर में भारीपन, सूक्ष्म में भी हमें थोड़ा जो बहुत ज़्यादा हल्का फील करते हैं, ये गरिमा। यहाँ यदि आप बायां हाथ रखा, दायां हाथ रखा, ये इन दोनों, इस एड़ी के ऊपर, ये नाभि के पास आएगा। ये आपकी लघिमा शक्ति, आप में लघिमा शक्ति आपको प्राप्त होती है। ये आपका यहाँ तक परफेक्शन है सिद्धासन की। सिवनी नाड़ी दबी हुई, दोनों अंगूठे छुपे हुए जगह पिंडलिनी में, ये दो वेरिएशंस मैंने आपको बताए। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको थोड़ा बार बार मुझे कैमरा क्लोज से दिखाना पड़ेगा आपको, तो क्योंकि इसमें ये बहुत साइंटिफिक है। अब जब देखिए, आपको मैंने हाथों की पोजीशन बता दी ज्ञान मुद्रा में, या फिर हम यहाँ आ सकते हैं लघिमा के लिए। उसके बाद आपके आंखों की 3 पोजीशंस हैं, 3 इसमें आपके वेरिएशंस हैं। पहला, आप आंखें बंद कर सकते हैं। देखिए, आप आंखें बंद हुई। दूसरा वेरिएशन, आप आंखें थोड़ी सी पलकें आई बॉल्स को ऊपर चढ़ा लेंगे, ये, और पलकें आपकी आधी बंद रहेंगी। जैसा आप देखते हैं गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटो, उनकी स्वतः ही आंखें आपकी भी ऐसी ही होंगी। जब आप ध्यान क्रिया में होंगे, आपको करना नहीं है, वो आंखें फोल्ड होके आपका ध्यान जहाँ जहाँ जाता है, आपकी आंखें वहीं घूम जाती हैं। आपका ध्यान निम्न चक्रों में होगा। जब आप केंद्रित करेंगे, आंखें अपने आप की, आपकी आई बॉल नीचे राउंड रोल होंगी। आप ऊपर ध्यान जाएगा तो आंखें आपकी इन सिद्ध पुरुषों का हमेशा सहस्त्रदल कमल में, सचखंड में विद्यमान रहते हैं। तो इनकी आपने देखा होगा, श्री गुरु नानक देव जी, हमारे जितने महात्मा बुद्ध, आप जितने, आपकी आंखें ये इस तरीके से चढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से ये वेरिएशन हुआ। जस्ट ए मिनट, मैं आपसे अभी कंटिन्यू होता हूँ। हियर इज सम मैसेज फ्रॉम समबडी। Here is some message, from some Manish Sharma ji. Welcome, Manish Sharma ji. So it doesn't play on this, screen anyway. We are trying because some technical fault. Otherwise, these should appear on the screen. Here is some Manish Sharma ji. वज्रौली मुद्रा का प्रैक्टिकल भी करना सिखाइएगा स्वामी जी। एनीवे, सो हाँ, डेफिनेटली आप मनीष जी, आप लाइव हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो कल से हम और इसको इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो आपके जो यहाँ अपीयर हो स्क्रीन के ऊपर, आप जो वज्रौली क्रिया आप देखिए, आपका सूक्ष्म दृष्टि। मनीष जी, मैं आपको एक एडवाइस करूँगा थोड़ा यहाँ, ये हमें बहुत सटल चीज़ें हैं, इनको, ये वज्रौली और खेचरी, आपने बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, वज्रौली और खेचरी का 2 दिन से वही कर रहा हूँ। ये आपको बचपन में केजी के जैसे बच्चा होता है, इस तरीके से ये क्रियाएं ना तो ओपन होती हैं, ना आपके हाथ पकड़ के वज्रौली, आपका हाथ पकड़ के, आपका लिंगेंद्री पकड़ के आपको कोई वज्रौली नहीं सिखाई जाती। आपकी सूक्ष्म दृष्टि, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही वज्रौली का पहला लेसन है, समाधि में जाने का। तीव्र पेनिट्रेटिंग आइज, आप वज्रौली सिखाइए। आप देखिए मनीष जी, आई होप यू वोंट माइंड, आप ये जो पूरी प्रक्रियाएं वज्रौली और खेचरी और समाधि के लिए ही चल रही हैं। वज्रौली आप सीखना, आप यम नियम मैं कर रहा हूँ उसको पालन कीजिए। उसके बाद आप आसन सिद्ध कीजिए, आपकी सूत्र नीति है जो सिद्ध कर रहे हैं। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ भी, आप मुझसे फिर थोड़ी देर में कहेंगे कुंडलिनी जगाना शुरू कीजिए। वज्रौली का प्रैक्टिस, मैं थोड़ा सा कैंडिड हो रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है, गुफाओं में योगी वो कंदराओं में वो इन चीज़ों को शेयर भी नहीं करते हैं, और जो वहाँ लेवल तक पहुँचता है, उसकी जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, वो उसको गुरु के एक मात्र इशारे को पकड़ना है। तो ये सब हम उसी ओर जा रहे हैं। मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को जानना है, भगवान बनना पड़ता है। ये जो हमारा पूरा प्रयास हो रहा है, ये मनीष शर्मा जी आपके लिए स्पेशल मैसेज है, ये हम उसी के लिए जा रहे हैं। अब मेरी कोई गर्दन पकड़ के गुरुजी मुझे नहीं ले जाएंगे सचखंड में, वहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, आप हैं, विज्ञान है। तो आप देखिए, वज्रौली क्रिया हम उसी ओर जा रहे हैं।
उसके लिए आपको मैंने कितनी बार, आप आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वज्रोली से पहले खेचरी से धोना है, प्राणों पे स्तंभन आना है। तो आप एकदम से आप पकड़ रहे हैं वज्रोली को। इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। पहले सूत्र नीति 10 मिनट का खेल है ये, इसलिए मैंने आपको कहा फॉलो द टाइगर्स। रूपांतरण होना है। टाइगर, आप शेर को फॉलो करेंगे, शेर आप अपने आप बनते चले जाएंगे। आपने शेर से पूछना नहीं है कि मैं कैसे फॉलो करूं, आपको पहले शेर बनना है, फिर आपको पता लगेगा आप शेर को कैसे, जंगल को कैसे पार किया जाता है। तो ये वज्रोली, ये खेचरी, ये सिंहों का खेल है। सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। खंडेरी तारते चलना, ऐसे सैक्रिफाइस करना, भगवान को इंद्रियों का सैक्रिफाइस डालना, फिर वज्रोली प्रकट होगी, फिर खेचरी। मरते दम तक ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, सूंपों बातें, नो, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल, ये दिस इज द डिमांड ऑफ द योगा, पेनिट्रेटिंग आइज। सो आपका क्वेश्चन लगना चाहिए कि कोई योगी पूछ रहा है, कोई अभ्यासी पूछ रहा है। तो हम 2 ही दिन से कर रहे हैं ये, हम पूरा वहीं जा रहे हैं, और खेचरी वज्रोली ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो वज्रोली की ओर जाने से पहले मैंने आपसे कहा पूर्ण रूपेण वज्रोली खेचरी से गृहस्थों के लिए मैं अभी डालूंगा, बोला आपसे पार्शियल होगा वो। कैसे एजेकुलेशन सिस्टम पे कंट्रोल करना है, कैसे घंटों सेक्स में बिना पतित हुए। इसलिए मैं यंग जनरेशन को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू मनीष शर्मा जी, आपका जो मेरा एक नया आपने इग्निशन दे दिया। ये हमें सूक्ष्म दृष्टि होनी है, तो आप इनको फॉलो कीजिए। और या वज्रोली के अभ्यास के लिए आपका नौली क्रिया हम ये वही कर रहे हैं, आपने इसको सूक्ष्म पकड़ना है। मैंने आपसे कहा कि नौली अवश्य है, ये षटकर्म, तो आप पहले इनको पूर्ण रूपेण सिद्ध कीजिए, फिर वज्रोली। ये स्वतः वज्रोली ही हो रही है। अंतिम परिणति मोक्ष में जाना, विचारों का स्तंभन। विचारों से आपका सीमन नहीं वो खिंचता संभोग के समय। यदि आप कमजोर हैं, वो तो योनि देख के आपका स्खलन हो जाता है। मैं इसलिए यंग जनरेशन को इनवाइट कर रहा हूं। दृढ़ योगी, कंप्लीट कंट्रोल। हाँ, अगेन हम आए आसन के ऊपर, सिद्धासन। इट वाज द आंसर मुनीष जी। ये सिद्धासन मैंने आपको बताया, बड़ा गहन विषय है, फॉलो कीजिए। आई होप यू वोंट माई यू नो समटाइम्स पेंट ऑफ एनर्जीज। यह आपका सिवनी नाड़ी दबी, आपका ये बायां और दाहिना आपका अंगूठा, ये देखिए पिंडलिनी जगह में छुपा, सबसे बड़ा आसन है ये। उसके बाद मैंने आपको वेरिएशन हाथ के बताए, अब आंखों का मैं आपको बता रहा था। पहली उसकी आप जो सिंपल आंखें बंद कर लीजिए, मन में आप जाप कर सकते हैं, जैसा भी जो आप करते हैं। आप यहाँ से विपासना कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम आपका हंसा जाप। हम अनेकों, हम धीरे धीरे जाएंगे उसमें। तो ये आप कर सकते हैं, कहीं ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं, वह अन्यथा ध्यान स्वतः ही केंद्रित होता है, किया नहीं जाता। तो आपने सिर्फ ये योग की ब्यूटी है। आपने यम नियम पालन करना है, सूत्र नीति धोती आसन करने हैं, आपकी एनर्जी स्वतः रेज होएंगी। आपको बार बार कुंडलिनी, ये तोता रिठंत बातें, वज्रोली, खेचरी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, प्राण, अपान, इट्स ऑल मियर टॉक। जब आप यम नियम में उतरेंगे, आपके स्वतः ही स्वयं होने लगेगा। जब आपके पास बैंक बैलेंस होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको पता होगा कि ये मैंने मर्सिडीज कहाँ से लानी है, वो वज्रोली है। जब आप में वो गुण आएंगे, आप यम नियम पालन करेंगे, वीर होगा, खुराक खाएंगे, मर्यादित रहेंगे, आपको पता होगा ये वज्रोली कहाँ आगे होनी है। तो ये पहला चरण है, नीति, नौली, ये आसन जो मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ, ये सिद्धासन का सबसे बड़ा आसन है, बाद में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। जिसमें सिद्धासन करना है, फिर आँखों का बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये है आपका आँखों की वेरिएशन। पहली, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, धीरे से पलकें, देखिए अब मैं कितने आराम से पलकें झुकाई, आई बॉल्स मैंने ऊपर रोल की। जब आप स्टेबल ऑफ माइंड हैं, शांत हैं, ये स्वतः ही होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो देखिए ऐसा हो जाते हैं, दुर्गा के रूप में जिह्वा बाहर निकलती है, ये स्वतः होती हैं चीज़ें। लेकिन अभी आपको बताने के लिए आसन कैसे करना है। पहली पोजीशन आँखों की,
इमीडिएट आपको ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट होगा, शांति आप में, असीम शांति का आप अनुभव करेंगे। उसी समय आप ऑफिस में भी बैठे हैं, ये आंखें इस तरीके से आप रोल करेंगे, हाँ हाँ हाँ, इमीडिएट शांत। दूसरा ये है आपकी शांभवी क्रिया, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे सिद्धों के दर्शन होते हैं, गिद्ध दृष्टि की प्राप्ति होती है। हमारा बायां दायां जो ग्लोब है मस्तिष्क का, आपके ये कंट्रोल में आते हैं। सुषुम्ना भी ओपन हो जाती है अधिक शांभवी में, इसका हम रहस्य में जाएंगे बाद में। आप देखिए ये है शांभवी, इसका नाम है शांभवी क्रिया। आंखों में, आंखों को यहाँ केंद्रित करना है। देखिए आज्ञा चक्र में, ये दोनों आंखों भ्रू मध्य में, मैं आई होप यू कैन सी मी, लेट मी ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। ये मेरी आंखें यहाँ भ्रिकुटी में, ये भ्रिकुटी के मध्य में, यहाँ भ्रिकुटी है, देखिए यहाँ केंद्रित है। जब आप ऐसा करेंगे आपको सामने की वस्तुएं दो दिखेंगी। ये रेटिना पे आपकी दो इमेजेस बनती हैं, ये देख लीजिए। ये सबसे बड़ी क्रिया है शांभवी। कई बार आपको ये विकृत रूप में सुनने में मिल जाती है, ये यौगिक शांभवी है। यहाँ घंटों साधना की जाती है, 3 घंटे 48 मिनट की साधना सिद्धासन में समाधिस्थ आपको स्वतः ही कर देगी। यहाँ इसका एक और रूप शांभवी का उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा, द अनदर नेम गिवन टू दिस इज उन्मनी, द सेम। कुछ लोग कहते हैं कि शांभवी इसे भी माना गया है, सब ठीक है, सब अलग अलग उसके अनुसार। ये कुछ शांभवी इसे भी मानते हैं, कुछ इसे शांभवी मानते हैं, और कुछ ये उन्मनी मुद्रा भी है। उन्मनी मतलब मन से ऊपर विचारों का स्तंभन। यहाँ आपको सिद्धों के दर्शन होते हैं, आप प्रयास कीजिए इसको करने का, आप देखेंगे आपके प्राण स्वतः चढ़ेंगे, प्रारंभ में नहीं। जब आपका आसन सिद्ध होता है धीरे धीरे, आप देखिए कंफर्टेबली आप जब बैठेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी स्वतः ही सिद्ध होगी, आपको प्रयास नहीं करना है, प्राण आपके अपने आप उठने लगेंगे। तो ये उन्मनी मुद्रा, ये हुआ आपका सिद्धासन, 84 लाख आसनों का देवता सबसे बड़ा आसन। कारण देखिए एनर्जीज लॉक हुई, हमारी एनर्जीज हाथों की उंगलियों से, इन इंद्रियों से, जिह्वा से, मुंह से, बातों से, और आप जानते हैं प्रजनन इंद्रिय से, ये सब से आपकी निकलती रहती है एनर्जीज। तो योगी आंसुओं से, देखिए किसी ट्रेजेडी होती है या बहुत खुशी होती है, आपकी एनर्जी आंसुओं में अश्रुधारा बन के निकलती है। आपको बचाने के लिए सिस्टम है नेचर का कि ब्रेन उस जर्क को सहन कर पाए ना कर पाए, तो एनर्जी आपकी अश्रुधारा, योगी इसको कंट्रोल करते हैं। त्राटक करेंगे, अश्रु नहीं आने देना, ये प्राण शक्ति है, तो इसको रोकना है और आपके शस्त्र दल कमल में वो एनर्जी को जाना है। तो ये डिटेल में है, इतना ज़्यादा इस तरीके से एक एक आसन को आप जानिए और फिर कितना करना है। ये आप उन्मनी मुद्रा में यदि आप रह सकते हैं, अभी आप 10 मिनट में, अभी भी आप यदि लाइव देख रहे हैं मुझे, इस उन्मनी मुद्रा में यदि आप अभी इस समय 1 मिनट भी रहते हैं, देखिए क्या होता है। आप देखेंगे हल्का सा यहाँ दर्द होगा आपका, क्योंकि राइट आपका जो ग्लो है, इसके जो आपके दिमाग मस्तिष्क में 2 लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बायां, ये पूरा विज्ञान है, उसमें हम पूरा मेडिकल साइंस में अभी नहीं जा सकते, आप पढ़िए, वो भी अच्छा है, एनाटॉमी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका कंसंट्रेट होता है, आपका दिमाग स्वतः ही अध्यात्म की ओर जाता है, आपका ध्यान स्वतः ही अध्यात्म की ओर जाता है। ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये मेरे माता पिता, ये मेरे दोस्त, ये कहाँ शमशान में जलाए जा रहे हैं, क्रिमेशन हो रही है, आपका ध्यान स्वतः ही उधर जाएगा। तो ये बहुत गहन विषय है। ये हुआ आपका सिद्धासन। मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हमारा ये आपका सबसे बड़ा बलिदान जो किया जाता है, फूल ऑफर जैसे भगवान को सरेंडर, ये आपके लिए बलिदान यही होगा कि हम मैक्सिमम इस, आप ग्रुप बनाइए, इसको पूरे लोगों, मानव जाति में इसको, योग को पूरा फैलने दीजिए। ये क्योंकि हम, माता की कृपा है, भगवान की दया है कि यदि आप स्वयं संतुष्ट हैं। एक कहावत है हिंदी में, भूखा क्या खाएगा और क्या नहाएगा। यदि हम खुद ही भूखे हैं, खुद ही नंगे हैं, तो हम दूसरे को क्या देंगे। पहले यदि आप पूर्ण रूप से तृप्त हैं,
यदि आप स्वतः ही आप विक्षिप्त हैं, आपको संसार की चीज़ें हैं, तो योग का प्रचार उन श्रृंखलाओं से नहीं हो सकता। तो पहली चीज़, आप स्वयं में कंटेम्प्ट, संतुष्टि, ये यम नियम का अगला एक नियम। जप, संतोष, संतोष इसका यम नियम के अंदर का अलग साधन। तो ये मैंने आपको बताया सिद्धासन। तो इस सिद्धासन में आपने क्या करना है अब इम्पॉर्टेंट, सिद्धासन में हमने प्राणायाम अभ्यास करेंगे पूरे आपके शुरुआत ये जो आपकी शोधन क्रिया से, नाड़ी शोधन, कपालभाति, नेति, धोती, हमने और उज्जयी प्राणायामा, भ्रामरी प्राणायामा, डिपेंडिंग। और यदि समाधि की ओर जाना है, फिर ज़्यादा सूंप हो नहीं, फिर तो एक आसन आपका सिद्ध होगा, ओम नमः शिवाय। फिर बातों की बात नहीं, एक द्वैतवाद से परे। फिर नारायण का खेल है, आप रिमोट कंट्रोल हैं, अब नारायण शिव के चरणों में है। फिर ये उनका, श्री भगवान श्री कृष्ण का मिशन है। फिर आप उस समय आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं, आप कर चुके हैं अपने कर्म, यही योग है फ्लाइट में बैठने तक का। फिर श्री नारायण आपका प्लेन उड़ाते हैं, फिर आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। ये उससे पहले का है सब, प्लेन में जाने का यम नियम, आसन, प्राणायाम। सो यहाँ आप ध्यान रखने वाली बात, द टाइम इज ओके। गृहस्थों ने इसको कदाचित भी आधे घंटे से ज़्यादा, गृहस्थ मतलब जो अभी यौवन में है, जिन्होंने स्थानोत्पत्ति करनी है, आपने इस जीवन में हम मृत्यु लोक में आनंद भी लेना है, आप कर्मोवश आए हैं, सेक्स में दृढ़ होना है आपने। वीरान भोगस्य वसुंधरा, वीरान जो वीर हैं वही वसुंधरा, धरती पे जो कुछ भी है, चाहे वो उसको वीर ही भोगते हैं जो तगड़े हैं, योद्धा हैं। तो योगा हमें योद्धा बनाता है, इंद्रियों पर विजय। फिर उसे भोगना भी है तो फिर लायन के माफिक भोगना है, जयकौल के माफिक नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा था। तो वीरान भोगस्य वसुंधरा, ये मैं आपको ला रहा हूँ सिद्धासन के ऊपर। आपने सिद्धासन, जिनकी जीवन की जो पद्धति है, अभी आप यूथफुल हैं, यंग हैं, आप अभी गुफाओं में जाने की नहीं सोच रहे हैं, जाना भी नहीं चाहिए आपको, जो आपके कर्मों का जीवन में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण का, ये आसन उनको अधिक नहीं करना है, क्योंकि सिवनी नाड़ी दबती है आपका। जो ये सिर्फ बहुत ज़्यादा समाधि में जाने के लिए आसन है, क्योंकि एनर्जीज लॉक हैं, सब्लिमेशन पूरा असेंडिंग होएगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे आपको। लेकिन काम वासनाएं होनी बहुत क्षीण हो जाएंगी, क्योंकि आपका वीर की गति आप ऊपर दे चुके हैं। तो ये आसन आप, लेकिन इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। जो इसको प्रयोग करके देख सकते हैं कभी भी आप, जैसे मैं आप सिद्धासन में देखिए, आप कंफर्टेबली पहले तो बैठे होना चाहिए, कोई टॉर्चर ना हो, वो स्वतः ही होगा जब आप यम नियम पालन करेंगे। और ये सिद्धासन में आप, जिन्होंने अब अधिक करना है उनके लिए सिद्धासन में उन्मनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा में आ जाइए। आंखें आप इमीडिएट आप ऊपर यहाँ रख सकते हैं, अश्रुधारा नहीं आने देनी, आंसू नहीं आने देने। यहाँ से आपका मन आप देखेंगे, आप इस पे बैठेंगे आसन पे, आप स्वतः पाएंगे कि मात्र 10 मिनट बाद, अब देखिए जैसे मेरी आवाज़ धीमी, शांत, मैं थोड़ी देर और रहूँगा, अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो मेरी एनर्जीज़ हैं, जो बाह्यमुखी अभी हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अंतर्मुखी होके यहाँ से फिर खेल शुरू होता है। प्राण स्वतः ही सुषुम्ना में जाना प्रारंभ होंगे, वहाँ से ज्ञान माँ सरस्वती का खेल शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी का ईड़ा पिंगला का खेल वहाँ से समाप्त है, वहाँ से हम कट जाते हैं। तो ये शीर्षासन आप अधिक कर सकते हैं। दूसरा, शीर्षासन के अभ्यास से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। जो ज़्यादा भी करते हैं, जो एडवांस इसमें जाना चाहते हैं समाधिस में, उनको स्वतः ही पता है। जो शीर्षासन नियम करते हैं, उन्हें शास्त्रों और इनकी ये स्वतः अंदर से ही स्फुरित होती हैं चीज़ें। जैसे एक प्रकाश हुआ, सूर्य उदय हुआ, आपको मालूम है कहाँ जाना है। फिर आपका ज्ञान, आप स्वयं ही हैं, सब नारायण फिर आपके साथ ही हैं, आप ही नारायण हैं। तो इसमें जिन्होंने अधिक करना है, शरीर में हीट पैदा होती है। जैसे आप इसमें बैठ के जब भी करेंगे, आप सोहंग भी करेंगे, आप कुछ मंत्र जाप करते हैं, अधिक देर बैठेंगे, शिवनी प्रेस है, आप में हीट पैदा होगा। उस हीट को बैलेंस करने के लिए आपको चंद्रभेदी प्राणायाम बाद में करने हैं।
जो प्रारंभ में आप करेंगे हीट पैदा होगा तो ये चंद्रभेदी बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, या शीतली प्राणायाम। तो ये प्राणायामों में हम बहुत डीपली उतरेंगे, एक एक प्राणायाम जो केवली कुंभक तक जाता है, और फिर वहाँ से हमारी अध्यात्म यात्रा शुरू होती है। तो ये था आज का हमारा आपका सिद्धासन का। अब यहाँ पर मैं आपको लाता हूँ कि सिद्धासन, मैं थोड़ा सा इसमें देखिए, कई बार मैंने कई बार योगा सेंटर्स में भी देखा है, हम कई बार संकोच कर जाते हैं। देखा आपने नागा बाबा महादेव, आपके स्वामी, आपके जो महात्मा बुद्ध जी, आपके अब देखिए हमारे नागा बाबा जैन मुनि जी, वो तो वस्त्र ईगो अहम से बहुत ऊपर हैं। तो हम जब विज्ञान में उतरे हैं तो एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये एनेटमी है बॉडी का। जब स्त्रियों ने करना है सिद्धासन तो कैसे करना है, उसमें सिर्फ भेद इतना है कि आपका जो मैंने ये देखिए नाड़ी दबाई, अपनी सिवनी नाड़ी जब आप दबाते हैं तो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, आप जो भी हैं, यंग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, जब आपने सिद्धासन का अभ्यास करना है, आप योगिन हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा आसन है। आपको जो साधनाएं आप महीनों सालों करते हैं वो आपको महीनों और दिनों में भी आपको स्वतः अनुभूत होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। अभी भी आप सिद्धासन का यदि आप सिवनी भी आप दबा के बैठते हैं एड़ी से, आपका मन स्वतः ही स्थिर होने लगेगा। ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये लो होना, ये तो बहुत दूर की, बहुत निम्न, बहुत एक नर्क तुल्य बातें हैं। योग में तो विदेही है, आनंदमयी है, देह का भान नहीं है। तो ये देखिए बातों के साथ आज रिजल्ट ओरिएंटेड ये है कि हमने आते ही साथ साथ हम गीता का अध्ययन भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं। हमने आते ही देखिए आपका सूत्र नीति, जल नीति, आज एडवांस नीति हमने जो नाक से सिर्फ लोटे की आवश्यकता नहीं वो किया। फिर सिद्धासन के अभ्यास पे आ गए, फिर नाक से पानी कैसे सुखाना है ये हमने किया। आप स्त्रियों के लिए मैं चल रहा था, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप स्त्रियों ने कैसे करना है सिद्धासन। आपने ये सिवनी दबाने की बजाय आपने क्लीटस, इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसे क्लिटोरिस कहते हैं, पंजाबी में आई होप यू वोंट माइंड। ये जो इंग्लिश में कुछ चीज़ें मेडिकल साइंस में बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं उसको हिंदी या पंजाबी में नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो शरीर से ऊपर है। ये मात्र शरीर, ये सिर्फ मलमूत्र की नलिकाएं हैं। यदि आप ऊंचे उठ जाते हैं, आप इस इनको एनिमल की जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, ये मात्र आपके लिए शरीर कुछ नहीं, ये शरीर की वास्तविक एनाटॉमी है। नहीं देखिए हम कैसे नाक से पूरा ये सींड और ये पूरी, हम अभी शंख प्रक्षालन करेंगे, पूरी इंटेस्टाइन में पूरा मल द्वार सब तो बदबू सब बाहर करते हैं। सो ये शरीर योगियों के लिए आप बहुत ऊपर उठना है। सिर्फ मात्र आपने, यदि आप गृहस्थ हैं आप कीजिए रिप्रोडक्शन, लेकिन योग के मार्ग में ये बहुत ऊंचाइयों के ऊपर है। तो मैं इसलिए इतना आपको बोला कि मैं बताने जा रहा हूँ कि स्त्रियों का जो योनि है, शिवलिंग आपने देखा है, योनि है, एक महायोनि है जो सूक्ष्म में भगवान शिव हैं, शंकर हैं, शिव हैं, एक महा भगवती हैं। तो हम सब वहीं से आए हैं, अर्धनारीश्वर, माता भी हैं, पिता हैं, शिव हैं, पार्वती हैं। तो स्त्रियों ने क्या करना है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं, जो सन्यासिन जो कहते हैं, योगा सन्यासिन, मैं अलग उस बातों में नहीं, उसने ये सिद्धासन में एड़ी से अपने क्लिटोरिस जो हमारा अति संवेदनशील आपका जो भाग में, जो आपका योनि में, उसको इससे प्रेस करना है, वो आपका मस्तिष्क से संबंधित है। इसका मैं आप इसे जब भी सिखाते हैं, योगा टीचर्स हैं, आप रेफर्स कर सकते हैं। और कुछ क्रियाएं हैं जो आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगी, जो योगी परम गोपनीय रहते हैं, मंत्रों का उत्कीलन करना और विशेष क्रियाएं हैं वो वहीं पे, जैसे आप लैब में पहुंचते हैं, आप कॉलेज में पहुंचे हैं, बच्चों के आगे केमिस्ट्री लैब में नहीं ले जाया जाता, वो स्वतः ही आपके लेवल के अनुसार नारायण आपको मिल जाएंगे, किसी भी रूप में वो होगा ही। तो आज सिद्धासन का हमने अभ्यास किया और यहाँ से हम प्राणायाम समय के अनुसार हम धीरे धीरे, कल जो हम स्विच करेंगे उज्जयी प्राणायाम और आपके केवली कुंभक तक हमने कैसे पहुँचना है विधिवत, और फिर आपके भस्त्रिका, कपाल भाती, धीरे धीरे हम स्विच करेंगे। तो आपने क्या करना है,
कि अब खाना, तो मैंने आपसे पहले ही कहा शाकाहारी भोजन, जो अभी जैसे हमारे कोई गुरु भाई कोई वजौली के बारे में पूछ रहे थे, वजौली का अभ्यास, तो आपने प्रयास कीजिए जो ज़्यादा इसमें सफलता और शीघ्रता से सफलता चाहते हैं। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, जो इसमें शीघ्रता से अग्रसर होना चाहते हैं वह आप प्रयास करें कि आप फलाहारी हो जाएं। और जो खिचड़ी का अभ्यास चाहते हैं, देखिए हमने धीरे से आपको खिचड़ी पे ले जाना ही ले जाना है, जिसमें एजलेस होते हैं। आपने वजौली का जिक्र किया, खिचड़ी कैसे सिद्ध करनी है। फिर हम डॉक्टर्स में आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ग्रुप में जोड़िए यंग जनरेशन। हम आपके सामने, हम आपके साथ, हम सब गुरु भाई हैं इस पूरे मृत्यु लोक में, एक ही सत्ता है। तो हम आपस में यहाँ अगेन गुरबाणी आती है, कृत करना वंड छकना। वंड छकना मीन्स शेयर करके खाना जो हमारे पास है। तो ये मेरा एक और आह्वान है उन लोगों के लिए जिनके पास लक्ष्मी रूप में ये सब मायावी है। इस मृत्युलोक से ऊपर भी अनंत माया भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। वो वहाँ से अनुकंपा से गुरुगम में आपको इस पूरे मृत्युलोक से भी कुछ अधिक, समाधि से भी अधिक नारायण आप में डाल सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, निसंदेह। सो आत्मा से भी परे परमात्मा, और वो अनलिमिटेड, इन्फिनाइट, स्काई इज द लिमिट मनुष्य की भाषा में। तो मेरा ये एक यहाँ से एक और है, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ये एनर्जी का आदान प्रदान है, जो बहुत भगवान की कृपा से, जिन्हें अपने कर्मवश, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त हैं, आप सब जानते हैं, वो एक शक्ति है। उस शक्ति का आप उपयोग अपनी समाधि के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आप योग भी ना करें, आप जिस कार्य में, यदि आप यहाँ मैं आपको लाता हूँ दान, सेक्रीफाइस, वंड छकना। देखिए शेख साहब हमारे, ओम सतनाम शिवाय गुरु, कैसे आपने कोविड में देखा लंगर लगे हुए हैं अमेरिका में, सेक्रीफाइस। ये हमारे भाइयों का एक रूपांतरण है। सिंह मीन्स लायन, टाइगर्स, जो हम रूपांतरण होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस मैं आपको ला रहा हूँ। एक सीधा सा तरीका मोक्ष का, जिनके पास लक्ष्मी है, धन है। यदि आप जीवों की सेवा करते हैं, आप जो वास्तव में जो आप समझते हैं उन्हें आप वितरित करते हैं, उसका एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, हिंदी में न्यूटन का लॉ, कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसका वापस होता है। जैसे इको हम आवाज़ करते हैं, लौट के आती है गुफाओं से, पहाड़ों से, वादियों से। हम जाएंगे वादियों में, करेंगे तो इको। आप जो भी कर्म करते हैं, यदि आप अच्छे कार्य के लिए अपने पैसे को कहीं देते हैं, उसका जो आपका प्रत्युत्तर होगा नारायण की तरफ से, वो आपको समाधि की ओर ले जाएगा। यदि आप निष्काम सेवा करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, सेवा करते हैं, ये भगवान की तरफ से एक ऑप्शन है आपका आदान प्रदान, तो वो होगा ही। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा, क्योंकि वो एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ये आज इस पिंड में है, वहाँ पिंड में है। आज इस आदान प्रदान की क्रिया में, इस प्रयोग में आपके लिए मुक्ति बहुत ही एक सुगम बन जा सकती है। फिर थोड़ा सा अभ्यास, वो जो आपकी सेवा है, जिसे सेवा भाव, जैसे आप गुरुद्वारों में जाएंगे, जूतों की सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है। जो जूते खोल के जाते हैं उनको साफ करना, सब में नारायण देखना। आप वेदों पुराणों में उतरिए, आप जब किसी मनुष्य को देखते हैं, उसके काली आंख, जो काला है अंदर, उसको ब्रह्मा समझिए। जो उससे बड़ा है तितली, उसको विष्णु, महेश, सफेद, उसको देखिए। हर पुरुष में मनुष्य को भगवान देखने का अभ्यास करना। इसलिए योगी कहते हैं, हे नारायण, हे प्रभु। आज का हमारा विषय था ये सूक्ष्म में। हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि आप भी ज्वाइन कीजिए। आप समय, हमारी वीडियोस रिकॉर्डिंग भी होती हैं, उनमें जाइए। आप एक अधिक से अधिक लोग जोड़िए इसको, अधिक से अधिक लोग इसमें। आप जो वजौली, फिर जो हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो जुड़े हैं, वजौली निसंदेह हम ले जाएंगे। और कई बार आप जो हम क्रोधित हो जाते हैं, योगी का क्रोध होना
एक अच्छा लक्षण है। हमारे गुरुजी जब हम पे क्रोधित होते थे तो अगले ही क्षण हमें अनुभूतियाँ होनी स्टार्ट होती थी। सो क्रोध है कि ये एनर्जीज़ का एक आदान प्रदान है। तो यदि कभी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, कई बार हम एनर्जियों के फ्लो में, अब देखिए मैं 1-2 घंटे से बोल रहा हूँ, ये एनर्जी का एक बड़ा अच्छा एक सब्लिमेशन हो रहा है ना। हम कितना एक माता की इस लीला में हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये मेरा उन व्यक्तियों के लिए, भारतवर्ष के, ओफ सोने की चिड़िया है भारत, आज उनका नाम लिए बिना हम जानते हैं। तो आप ऐसे समय में वितरण कीजिए, वंड छकिए, भोजन कराइए लोगों को, जीवों को, फिर ये प्रयोग कीजिए, फिर ये योग। आप सोते ही आप में कैसे कुंडलिनी जागना किसे कहते हैं, आप में सोते ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सो ये एक अलग रास्ता मैंने आपको बताया। तो कैसे हम अपनी एनर्जी हमको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे चैनल करते हैं। हमारे पास सब एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, हमने अब देखना है उसको सबमरीन। और योग में हमें एक पनडुब्बी जैसा मिल जाती है, फिर हम गहराइयों में उतर भी जाते हैं समंदर की, फिर हमें कुछ नहीं छू पाता, ना शार्क खा पाती है। दोबारा मैं आपसे बता रहा हूँ। तो कोरोना से हमने शील्ड करना है इस तरीके से। तो हमारी वो कोरोना के लिए हमारे पास एक सबमरीन है, पनडुब्बी है विद न्यूक्लियर पावर। फिर आप यहाँ कहीं भी घूमते रहिए आप। तो वो हमने पहुँचना है। तो आज के लिए हमारा यहाँ तक होगा। और आप कैसे, जैसे जैसे मैं कंप्यूटर्स में देखते हैं कैसे जूम में आपसे इंटरेक्ट हो सके, आपसे मैं क्वेश्चनिंग आंसर कर सकूं, हम यहाँ गीता, भगवत गीता और थोड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जिनमें मैं थोड़ा पारंगत हूँ। और हाँ, प्रोफेट मोहम्मद साहब, देखिए मैं इंडोनेशियन कंट्री में हूँ, ग्लोबल सब एक ही है, ये मुस्लिम कंट्री है, मेरे आर्मी के भाई, मैं यहाँ आपको जान के मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। प्रोफेट मोहम्मद, डोंट हर्ट अदर्स, यू वोंट बी हर्ट। मैं मसूरी में था, गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल, इट्स इन मसूरी, इंडिया, वहाँ था मैं। तो वहाँ एक घुसते ही एक बोर्ड लगा था, डोंट हर्ट अदर्स, यू वोंट बी हर्ट। किसी को दुख मत पहुँचाइए, आपको भी दुख नहीं पहुँचाया जाएगा। ये गॉड हेड्स के प्रॉफेट मोहम्मद के वर्ड्स हैं। अब इसमें कितनी गहराई से हम कितना उतरते हैं, महात्मा बुद्ध जी के वर्ड हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, पतंजलि, नॉन वायलेंस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब हमने देखना है कि हम कितना गहराई, कितना क्या पिकअप कर पाते हैं। सो ये हमारा लक्ष्य था, ये हमारा ध्येय था, ये सबसे बड़ी सेवा है। अभी हमें जो लोग आश्रम में, फॉर द इंग्लिश पीपल टू, यू नो, दोज हु जस्ट कैंट अफोर्ड टू go in the, just because of this new variant, you avoid practicing yoga in groups. It's my humble, we have to save each other. Sometimes there is very thin line difference in the bravery and stupidity. So sometimes in the effort of being or posing ourselves as brave, or we make mistakes, So we have to follow the doctor's instructions. हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमारे भगवान का दूसरा रूप हैं। ये तो हम सब एक ही सत्ता है। उन्होंने बहुत रिसर्च की हैं, ये वैज्ञानिक हैं, उन्हीं की वजह से आज देखिए हम आदान प्रदान कर रहे हैं। अष्टांग योग में, तंत्र में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आप वंचित रह जाएं। और भगवान की लीला इस प्रकार से है। आपका अभी ये सेक्रीफाइस, जो मुझे सुनते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, आप निश्चित ही वज्रौली और खेचरी आप में इंड्यूस होगी, निसंदेह। लेकिन आपका सेक्रीफाइस ये होगा, ये आदान प्रदान है। आप सिर्फ इसको ग्रुप में जोड़िए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप इनको, मेरी जो वीडियोस हैं, यू मेक इट ए प्रोफेशन, यूज कीजिए आप। इफ़ यू गेट मनी फ्रॉम समवेयर फॉर योर अर्निंग, गो इन फॉर दैट। आप अपना जीवन यापन कीजिए, इस योग को फैलाइए, अधिक से अधिक सीखने दीजिए लोगों को, जोड़िए इसमें। तो हमारे पास समय है अभी पर्याप्त, माता की कृपा से। कुछ हमारे साथ बड़े अमेरिकन्स, आई सैल्यूट देम, सोलर पावर्ड ह्यूमंस। हमारी आप साइट में जाइए, यूट्यूब में तो आप हमारे साथ रोज़ रहिए। कल हम जो वज्रौली की जो खेचरी, जो धीरे धीरे हमने कैसे जाना है, नथिंग इज़ इंस्टेंट, एकदम से नहीं है, बहुत इसमें जन्मों का खेल है। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि जो इमली का पेड़ है, ओके, जो इमली के पेड़ में आपने देखा है कितने पत्ते हैं, उसको गिना नहीं जा सकता। एक शाखा की एक पत्ते में सैकड़ों छोटे छोटे पत्ते हैं। तो ये उत्तर था
अनेक ये बड़े जो गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे भी गुरु सिंह परंपरा है कि हमें इतना धैर्य रखना है। परमात्मा में मिलने के लिए यदि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भी जन्म लेने पड़ जाएं तो भी हमें धैर्य नहीं खोना, क्योंकि ये समय कुछ नहीं है। जो सोलर पावर सिस्टम है, पृथ्वी का रोटेशन, रेवोल्यूशन, चारों तरफ जो परिक्रमा है, ये छोटा सा समय है। आप टाइमलेसनेस में जाते हैं। सारे युग ब्रह्मलोक का एक दिन सारे युगों को कवर करता है। ब्रह्मलोक का एक दिन यानी कि ब्रह्मा जिसने जाना वो पूरे युगों को मिला के बनते बिगड़ते हैं युग। तो एक दिन के हमने ब्रह्म को जानना है, सब युगों का ज्ञान होना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हमारा बुक ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और यंग जनरेशन और जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, अब ये शांभवी क्रिया परम गोपनीय है। सो जो आप अभ्यास करते हैं इसे गोपनीय रखिए और फिर देखिए आपको क्या होता है। इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ आप मैक्सिमम मैं तो कोशिश करूँगा आप जो यंग हैं, जो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हैं, यंग बॉयज़ हैं जो ये जॉली खेचरी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और मृत्युलोक में भी आप चाहते हैं मृत्युलोक की सक्सेस से ऊपर उठना है हमने, फिर ये कुंडलिनी जागरण उसमें भी सहायक हो सकता है। योगी उसे स्वतः त्याग देते हैं, इसे स्वप्न मात्र समझकर। तो उसमें भी आप जाना चाहें तो उसके भी विधान है ना। संसारिक क्रियाएं कैसे जाप करने हैं आपसे मेरा ये एक रेसिप्रोकेशन है। अब जो लोग भी मुझसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके लिए एक जो आप कहीं आप जानवर देखते हैं, आप उन्हें फीड कीजिए। बजरंग बली हैं, पपीज़ हैं, उन्हें फीड कीजिए। यही आपका एक रेसिप्रोकेशन होगा। तो और इसको मैक्सिमम लोग आप शेयर कीजिए। हम इंग्लिश में भी फिर बनाएंगे कैसे है। बी विद मी एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। रोज़ सुबह बाली का सुबह और जैसा जैसा रिस्पांस है, जैसा हम कर पाएंगे रात को इन वादियों में बजरौली। हाँ, आप एम्प्टी स्टमक रहिए, फ्रूटेरियन हो जाइए। जो ज़्यादा जल्दी शीघ्रता से इसमें अग्रसर होना चाहते हैं, होगा वही जो हो है वही जो राम रचि राखा। जय विधि राखे राम, सोई विध रहिए राम। सो कंटेंटमेंट, संतुष्टि सबसे बड़ा इसका यम नियम, ये यम नियम का एक अंग है। संतुष्टि, तप फिर अलग है, संतोष, तप, अपरिग्रह। हम धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी आपका जो एफर्ट है, जो मैं आपसे डिमांड करता हूँ, मैक्सिमम यंग बॉयज़ को कैसे आप मेरे साथ संपर्क में लाते हैं। ये टोटली फिलेंथ्रोपिक मैंने जो सेवा के उसमें मिशन है। आइए, जो रोगों से पीड़ित हैं उनको कैसे हमने ट्रीट करना है, उन्हें भी यू आर लाइक या। तो इस तरीके से आप यू आर मोस्ट वेलकम। जुड़िए। फिर हम अरेंज करते हैं कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, ओपन डिस्कशन, आपसे वार्तालाप कैसे हो सके। विल प्रोसीड फर्दर। हाँ, खाने के लिए आप ध्यान रखिए। कल हम एक कुंजर क्रिया ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है लेकिन उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई बार कुंजर क्रिया से क्या बहुत बड़े हानियाँ हो जाती हैं, वो हम डिटेल में जाएंगे। पानी पीना, कुंजर मतलब हाथी को कल ऐड किया जाएगा इन क्रियाओं के साथ। और ये फिर अंत में सारे षट कर्म मिलके मात्र 20 मिनट में पूरे हो जाते हैं। हाँ, एक धोती क्रिया ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा समय लगता है, वस्त्र धोती। फिर नदी में जाएंगे, वो पानी कैसे खींचना है उसमें हम नदी, वो थोड़ा समय लगता है उनमें। सो इट्स ऑल फॉर द डे। आप ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और इन क्रियाओं के बाद एकदम से नहाइए मत। जब हम विगरस अभी साधना करेंगे कुंडलिनी जागरण की, आपका जो आपकी फैकल्टीज़ हैं मूलाधार खोलने की, विगरस 1-1 घंटा आपका प्राणायाम होगा। आप पसीना पसीना हो जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आप पसीने से तरोबर होंगे, ये आपको निचोड़ना पड़ जाएगा। उसके लिए आप तैयार रहिए मेंटली। यंग जनरेशन थोड़ा टफ एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की करेंगे। और कमर दर्द, कटी शक्ति विकासक क्रियाएं हम धीरे से ऐड करेंगे। कैसे स्लिप डिस्क और ये सब अपने आप ठीक होती हैं। यहाँ तक कि मंत्रों से भी ठीक होती हैं। मंत्रों से नौली घुमाई जा सकती है, वो अलग विषय है। शक्ति मंत्र है, तंत्र है, सब आपस में गुथे हुए हैं। तो यहाँ आपने, मेरा आपसे ये डिमांड है, यंग पीपल आप आइए इसमें। कंप्यूटर कैसे आप इसको मैनेज करते हैं मेरे साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, आप आगे इसको फैलाइए। अब ये हमारी सेवा है। बजाय उस दिन के कि हम एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए कंधे पे भाग रहे हैं अपने प्रियजनों को बचाने के लिए,
और फिर उनकी लाशें, आप दृश्य याद कीजिए गंगा जी में, उन यासें लावारिस जिन्हें हम छूने से डरते थे, अपने सगे, वो गंगा जी के ऊपर तैरती, और उन पे भी फिर होफ, उन पे देखिए पक्षी कौवे बैठे उन्हें खा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे, वो हमारा ही अंश है, ये लीला है भगवान की। तो उससे पहले ये हमारा एक योग, एक बड़ा हमारे एक देवताओं का, हमारे पूजनीय जो हमारे ऋषि मुनि हैं, आदरणीय देवराहा बाबा जी हैं, श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी हैं, आपके जो गुरु हैं, सब धन्य हैं गुरु, जो जिसके गुरु हैं उन्हें हृदय में स्थापित कीजिए, उन्हीं में आपके भगवान आके बसेंगे, आप में आएंगे। सो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, अनदर मैसेज, आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पुन्नू साहब, हमारे देखिए सिंह साहब, सिंह किते भी पहुँच जाने, में थोड़ा पंजाबी में सच कर रहे हैं। श्री वाहिगुरू जी खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि मैं आ भी हो रहा पंजाबी टैंक, साढ़े शरमन टैंक, विजेंद्र टैंक, उत्थे सिंह मिलते हैं फिर, है ना, जब फिर रिजर्व 5 सिख रेजिमेंट उस तो बाद साढ़ा अंबरसर हूँ इत्थे, फिर साढ़ा जगदीश सिंह धामी, वो पिपला वाला सुन रहे हैं जी, जगदीश साहब सुन ला, वाहिगुरू जी खालसा। ओ ब्रस्ट फायर लग्या ही तेरे नागालैंड में, एनी वे यू आर स्टिल हेल्दी। और इत्थे पुन्नू साहब मिले मैनू इत्थे अपना, one of my friends Punnu here, oh wonderful guy, I had a chance to be in his company in the yoga barn for some days, you know. Oh, marvelous, marvelous, God has placed me at in a heaven, you know, and satyam shivam sundaram, सुंदरता ही शिव है, आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आप में शिव है, उन्हें ही सब कुछ सुंदर लगता है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे जो एक्सपेरिमेंट मैनू जरा मौका मिला पन्नू साहब नाल थे, सो मार्वलस, ग्रेट गाइज। सिंह साहब शिवा, और सिख होते हुए देखिए, सिख साहब हैं, पाकिस्तान से आए थे 47 में, उनके डैडी सुंदर सिंह जी, आई यू लॉट टू दैम, वंडरफुल। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपको उनसे जोड़ने की कोशिश करूँगा, वो बहुत अच्छी क्रियाएं करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा गुफाओं में रहा, वो सारी क्रियाएं उन्हें बहुत ऊंची क्रियाएं वो करते हैं, वही क्रियाएं हैं गुफाओं की, रजनीश जी के माध्यम से, फिर या कोई गुरु अम्मा है, कोई भगवान, सब भगवान ही है चारों तरफ, सब एक ही है। तो अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग हिमालय पर्वत से वही सब आ रही हैं, आगे ट्रिब्यूटरीज हैं, हम सब ने समंदर में मिल जाना है, तो लक्ष्य वही है। तो सिंह साहब, पन्नू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर द ग्रेट कंपनी, यू नो, मार्वलस यू आर। तो आप कैसे आप संघर्ष करते हुए योग की, आपने कैसे, मार्वलस। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। Oh, wonderful, wonderful. Oh, I owe a lot to this whole universe. So, gratitude. Om Namah Shivaya. Jai Mahakal. Most welcome. See you tomorrow. Same time. Most welcome.